तो मुझे रियलाइज़ हुआ यहाँ से कुछ तो क्वेश्चन मेरे बन ही नहीं रहे हैं, ना पीवाईक्यू बन रहा है और ना टेस्ट के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो एक तरीके से मेरा वेस्टेड एफर्ट हो गया, या फिर आप मान सकते हो बहुत ही कम इसका आउटपुट आया। आपको दिमाग चलाना पड़ रहा है, और दिमाग चलाना किसको पसंद है? हमें चाहिए कि किताब में पन्ने पलटते रहें। आज सुबह ऐसा हो जाए कि मैंने 50 पेज रिवाइज किए। खुद को हम लोग कहते हैं ना, आज सुबह सुबह उठ के मैंने 3 चैप्टर मैंने स्पेक्ट्रम के 80 पेज पढ़ डाले। तो वो इतना इफेक्टिव नहीं है। उससे अच्छा तुम एक्टिव रिकॉल करो। फिर देखो तुम्हारा टोटल अटेम्प्ट कितना हुआ है। अगर टोटल अटेम्प्ट मान लो 60 क्वेश्चंस है, तो वैसे भी तुम नहीं निकालने वाले हो अभी ये वाला, तो इससे अच्छा तुम अपने अटेम्प्ट बढ़ा लो ताकि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। तो फिर ऐसे में तुक्के मारो, लेकिन ऑलरेडी 85 अटेम्प्ट कर चुके हो लेट से। कम मार्क्स क्यों आ रहा है? अगर तुम उसकी जड़ पे जाओगे तभी तुम्हारा मोटिवेशन वापस आएगा। बाकी तो वरना वो वाला यूट्यूब वाला मोटिवेशन होगा राजा बनने वाला, उससे तो देखो नहीं होने वाला। तो मार्क्स कैसे इंप्रूव करेंगे? हाँ, यही तो हुआ ना क्वेश्चन कि कंसिस्टेंसी कैसे आएगी। तो इसमें 2 फैक्टर्स हैं। जो चेक कर रहा है कॉपी, उसकी पर्सपेक्टिव से भी सोचो। हो सकता है उसने भी उतने अच्छे से तुम्हारा आंसर नहीं पढ़ा, तुम्हारा आंसर हो सकता है अच्छा हो, बट टेस्ट की इवैल्यूएशन पे आप डिपेंड नहीं हो सकते हो। किसी दिन कोई एक छोटी मोटी कोई कोने में भी न्यूज़ होगी जिसमें कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक हो गया होगा। एक बार एम्स पे हुआ था दिल्ली पे, कभी एटीएम बैंकिंग पे हो जाता है, कभी किसी पे। तो एक दिन न्यूज़ में आ रहा था कि सीएच बैंकिंग नेटवर्क को सर्विसेज है, उस पर अटैक हो गया। तो मैंने सोचा ये पॉइंट कोई नहीं लिखेगा। ऐसा नहीं कि ये बहुत ही खतरनाक पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट कोई नहीं लिखेगा, और मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि जैसे मैंने बहुत स्पेसिफिक चीज़ लिखी है। मैंने इसको 3 से 4 बार यूज़ किया था अपने टेस्ट में, और असली एग्जाम में भी एक बार यूज़ किया। Good morning, everyone. Thank you so much for joining us. Today's Topper Talk is about basically a person who has just not done it once, but has achieved the difficult feat twice. All right. Today's Topper Talk is about basically focus on the fact that, how to increase and improve your marks in the mains. How do you exactly excel mains, GS subjects? Because the optional strategy could be very different for different individual, and they have their own approaches. But what happens in GS subjects, for example, essay, ethics, GS3 is a kind of a very difficult subject. Listen to the topper talk about how he is actually increasing his marks in that, and he has made a huge effort for us. All right, so please welcome Ketan Shukla, who has secured an all India rank 75. Please, huge round of applause for him. Before we actually start, I would like to say a few words about Ketan. So Ketan is from Mainpuri, Uttar Pradesh, a very small town. He did his schooling from there only. So a small town boy has achieved, another feat. He is a very excellent student. He pursued electrical and electronics engineering from IIT Roorkee. After that, in that also, he secured rank 7 in GATE 2021. So it's not just that about he has maintained academic record then also. In his first attempt, that was in 2023, he secured a very good rank, and he secured rank 156 and got a place as an IPS. But he wanted to improve his scores, and he wanted his ultimate aim was to become an IS officer, and this year he secured rank 75. And in his mains, he has secured 817. And we will have here, you'll listen from the horse's mouth. So see, Topper's Talk is just not about motivation, it is about practical insights as somebody who has crashed one of the toughest exams in the country. And I absolutely congratulate from behalf of the Vision IS family. Ketan, stage is yours. Start the session. From behalf of the Vision IS family, we would like to actually give you and gift you some very books that we call the, sources of the ultimate knowledge. So please take it from behalf of us. Thank you so much. तो मैं प्रीलिम्स के लेके पहले जो बिल्कुल आपकी जो शॉर्ट क्वेरीज होंगी पहले वो ले लेता हूँ, और बाकी फिर आप लोग की प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को लेके जो आपके क्वेश्चंस हैं, ओके, देन आई विल स्टार्ट विद द मेंस। क्योंकि इस बार मेरा मेंस में रैंक इम्प्रूव ज़्यादा हुआ है, तो आई वुड बी फोकसिंग ऑन दैट एस्पेक्ट ऑल्सो। ओके, तो जो इस बार पेपर दे रहे हैं आप लोग को अभी क्या डाउट आ रहे हैं? Science and tech and साइंस एंड टेक and environment ecology. What are the resources that we have to refer? साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, रिवीजन कितनी बार करना है? ओके, Ancient history and art and culture. एंशियंट हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। ओके, मैं इसको AMAC लिख देता हूँ,
एशियन मिडिवल आर्ट एंड कल्चर। ओके, How can you revise the same thing again and again after knowing what you know already? वो अभी रिवीजन में हम लोग इसको कवर करते हैं। ओके, बाकियों के डाउट्स? हाँ, आप लोग अपना नाम भी बताते जाइएगा, ठीक है ना? छोटा ही सेशन रहेगा। Okay, sir. Okay. Hello. जी, My name is Ankush Gupta. Sir, I have a question that sir, जब भी हम रिवीजन करते हैं तो कुछ कुछ टॉपिक होता है, जैसे प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन तो क्लियर होते हैं, लेकिन 2 ऑप्शन होते हैं कि जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, जो समझ में नहीं आते, तो उसको कैसे टैकल करें सर? ओके, तो मतलब एमसीक्यू सॉल्विंग में हाँ, 50-50 पहुंच गए, उसके बाद कैसे करना है, लाइक Then दिस? I have one another question, sir. In economics सर, हमको कुछ जो साइंटिफिक टर्म होता है उसको डिफाइन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। साइंटिफिक टर्म को डिफाइन करने मेंस में? नहीं, प्रीलिम्स में जो होता है स्टेटमेंट बाय क्वेश्चन, हाँ हाँ इकोनॉमिक्स सेक्शन में, हाँ, उसको सर टैकल करने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ऑल्दो। ओके सर, आई कैन रिपीट। हाँ, सर इन इकोनॉमिक्स सर मुझे क्वेश्चन जो होता है, जैसे इकोनॉमिक्स टर्म हो गया, जैसे कुछ कुछ होता है जो अलग टर्म होता है, जो सिलेबस से आउट ऑफ। ओके, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस में हाँ लिख जी, देता हूँ सीधा, ठीक है? और किसी के क्वेश्चंस? ये मैं अभी केवल प्रीलिम्स का कवर कर रहा हूँ, मेंस का इसके बाद शुरू होगा। और किसी के क्वेश्चंस है कोई प्रीलिम्स को लेके, अगले साल को लेके भी? अगले साल तो देना है ना बाकियों को? ओके, नहीं है किसी के? ओके, तो साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट कहाँ से पढ़ना है, पहले तुम्हारा ये वाला इशू था, है ना? तो साइंस एंड टेक के लिए मुझे जो लगता है कि PT 365 जो है वो काफ़ी अच्छा सोर्स है आपका। अब इसमें लोग सब समझते हैं कि केवल करंट अफेयर्स आते हैं, बट देखना करंट अफेयर्स वो एक ही लाइन का होता है, बाकी जो पूरा पेज है वो उसमें थ्योरीज लिखी होती हैं, खासकर जो बॉक्स होते हैं वो उसमें उनका स्टैटिक पार्ट लिखा होता है, और सवाल जो आएगा वो स्टैटिक पार्ट से आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो आप एक बार को न्यूज़ को इग्नोर कर सकते हो। क्वेश्चन भी जब प्रीलिम्स में आता है तो कुछ पहले क्वेश्चन आ जाता है, उसके बाद हम लोग फिर ट्रैक करते हैं कि ये इसीलिए आया होगा क्योंकि ये करंट अफेयर्स में था। वो करंट अफेयर नहीं पूछ रहे हैं, फिर भी वो स्टैटिक ही पूछ रहे हैं उस चीज़ का, है ना? वैक्सीन्स पे आता है, जैसे कभी कभी स्पेस पे आता है, तो इसीलिए इसमें जो स्टैटिक पार्ट है वो आप अच्छे से कवर कर लीजिए। और बनाया इस तरीके से गया है कि पूरा सिलेबस कवर करती है ये, और फिर भी आप पे टाइम बच जाता है, तो आप एक ईयर पहले का भी कर सकते हैं। कुछ नई चीज़ें कम ही मिलेंगी क्योंकि स्टैटिक पार्ट तो सिमिलर है, कुछ चीज़ें नहीं मिल सकती हैं, तो आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज़ में जो सॉल्यूशन में आपको चीज़ें मिलेंगी, ओके, टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन में आपको काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, खासकर बायोटेक में, क्योंकि जैसे मेरा बायोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं था, तो मेरे लिए वो सारी नई चीज़ें थी, तो मैं से एक्सट्रैक्ट कर लेता था। तो आप टेस्ट सीरीज़ के सॉल्यूशन से निकालेंगे। PYQ जो है, PYQ का आप एनालाइज करोगे तो उसमें यही सब सब्जेक्ट्स हैं, बायोटेक हो गया, स्पेस हो गया, डिफेंस की कुछ क्वेश्चंस आते हैं, फिर कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री के आ जाते हैं जो कि थोड़े टफ भी होते हैं। तो आप मेजर फोकस रखिए बायोटेक और स्पेस वगैरह इन सब चीज़ों पे, यहाँ से क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है, खासकर इसका स्टैटिक पार्ट जो है, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल DNA पे कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है, आपने अगर नोटिस किया होगा, तो आप उस पार्ट को कवर करें। और इसके लिए अब एनवायरनमेंट के लिए ये दोनों चीज़ें कॉमन रहेंगी, ठीक है? एनवायरनमेंट में भी तुम लोग देखोगे PT 365 में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं, लाइक अभी तुम देखोगे तो उसमें कॉप की लिस्ट कहीं ना कहीं लिखी होगी, किगाली एग्रीमेंट क्या था वो भी लिखा होगा, क्योटो प्रोटोकॉल, सब कहीं ना कहीं पे PT 365 में मेंशन होगा। और तुम लोग अगर क्लासरूम कोर्स करते हो तब तो वो मेंशन उसमें पढ़ा ही देते हैं, लेकिन वो नहीं करते हो तो जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी ये PT 365 कवर कर देती है एनवायरनमेंट की भी। तो और उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज से उसको कॉम्प्लीमेंट कर लो। मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने आप में बहुत होलिस्टिक सोर्स बन जाता है, बनाया इस तरह से गया है। जबकि ये चीज़ ट्रू नहीं है पॉलिटी वगैरह के लिए, है ना? ऐसा नहीं कि ये सब में लगा रहे हो, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांति पढ़नी है और हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम ही करनी है। ओके, अब बात आती है AMSC को भी टैकल कर लेते हैं। AMSC के साथ मेरा अलग ही जर्नी रहा है। पहले मैंने तमिलनाडु बोर्ड से पढ़ा क्योंकि मुझे बताया गया कि ये छोटा है और आराम से हो जाएगा। फिर जब ये हो गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ यहाँ से कुछ तो क्वेश्चन मेरे बन ही नहीं रहे हैं, ना PYQ बन रहा है और ना टेस्ट के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो एक तरीके से मेरा वेस्टेड एफर्ट हो गया, या फिर मान सकते हो बहुत ही कम इसका आउटपुट आया। उसके बाद फिर मैंने शिफ्ट किया और टॉपर्स के नोट्स वगैरह ढूंढे, टॉपर्स नोट्स हो गए, और नितिन सिंघानिया। तो नितिन सिंघानिया पढ़ी तो वो तो बहुत ज़्यादा बल्कि है, वो तो कर ही नहीं जा सकती है। और टॉपर्स नोट्स इतने ज़्यादा क्रिस्प होते थे कि कोई स्टोरी नहीं है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है, इतनी ख़राब तरीके से लिखा है उन्होंने, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन लिख दी है। तो फाइनली जो मेरा इसका मुझे जो बेस्ट सोर्स लगा वो था लूसेंट। लूसेंट की GK की बुक आती है ना, लूसेंट की अगर तुमने बुक कर ली है तो लूसेंट में ऑलरेडी काफ़ी किताबों का निचोड़ है।
लूसेंट में आपकी एनसीईआरटीज भी कवर हो जाएंगी। आपके जो पीवाईक्यू में क्वेश्चंस आए हैं, कभी लूसेंट के कभी 3 साल पहले का एडिशन और आज का एडिशन देखना, जो पीवाईक्यू में क्वेश्चन आए वो लोग डाल देते हैं, तो वो उसमें और उसके साथ की आसपास की भी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा बल्कि है, बट इससे अच्छा सोर्स एशियन मिडिवल आर्ट एंड कल्चर के लिए नहीं है अभी भी, ऐसा मुझे लगता है, खासकर प्रीलिम्स के लिए ओनली। ठीक है, तो ये लूसेंट से करना है। अब बात आती है रिवीजन की। रिवीजन एक ही चीज़ को कैसे याद करें, बार बार पढ़ना है, ये सब बोलते हैं ना, बार बार रिवीजन करो याद हो जाएगा। इसमें ना ये थोड़ा सा आपको इसके बारे में एक्टिव और पैसिव रिकॉल के बारे में पता है क्या? एक्टिव रिवीजन और पैसिव रिवीजन किसी को पता है? ओके, एक्टिव रिवीजन और पैसिव रिवीजन होता है कि मेरे पास नोट्स हैं, मैंने आज सुबह उठ के उसको पढ़ लिया, फिर मुझे थोड़े थोड़े याद हो गए, थोड़ा थोड़ा नहीं भी याद है, 3 दिन बाद मैंने फिर से वो नोट्स घुमा लिए, जो कि लोग बोलते हैं कि आप फ्रिक्वेंटली रिवाइज करो। इसको बोलते हैं पैसिव रिवीजन, जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, और ये कहीं कहीं पे काम करता है, काफ़ी हद तक नहीं भी करता, लेकिन हमें लगता है यही रिवीजन है। असली रिवीजन जो मुझे लगता है वो एक्टिव रिकॉल जो होता है वो होता है। एक्टिव रिकॉल का मतलब है कि मैं अभी आपसे अचानक से पूछूं कि बैटल ऑफ पानीपत कौन सी ईयर में हुआ था फर्स्ट, ओके, हो सकता है तुम्हें वो पता हो या ना पता हो, तो मैंने फिर उसके बाद तुम्हें आंसर बता दिया। अब ये चीज़ तुम्हें लंबे टाइम तक याद रहेगी, क्योंकि तुमने पहले दिमाग को फंक्शन करवाया कि क्या था यार, इसमें था नहीं, उसके पहले था, उसके बाद में था, और फिर मैंने आंसर बताया, तो दिमाग में एक जगह क्रिएट हो गई है, उसमें तुमने वो आंसर रख दिया। ये लंबे टाइम तक याद रहता है। अगर पैसिव रिवीजन के तुम 5 सेशन करोगे ना, 5 बार रिवाइज करोगे, वो एक्टिव सेशन के 2 बार के बराबर है। अभी फिर करोगे कैसे? क्वेश्चन ये आता है। तो इसके लिए बहुत चीज़ें कि हम लोग बचपन में नहीं करते थे हाथ रख रख के, जब अगर मम्मी लोग पढ़ाती थी, पापा लोग, तो क्या करते थे कि ऊपर क्वेश्चन है कि तुम खुद से बताओ, वो एक्टिव रिकॉल था, वो लंबा याद रहता है। और हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन देखा आंसर पढ़ा, हाईलाइटेड पार्ट पढ़ रहे हैं, हम लोग पैसिव रिकॉल हर समय कर रहे हैं, इसलिए हमें नंबर ऑफ रिवीजन भी ज़्यादा लग रहे हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है, और इनएफिशिएंट प्रोसेस है। तो एक्टिव रिकॉल करो, उसके लिए आप बहुत चीज़ें कर सकते हो। मैंने एक बहुत अच्छा देखा कि एक इंसान क्या करता है, एक सिलेक्टेड ही है, वो ऐसे करता था, पेज के इस यहाँ पे लिखिएगा जो भी चीज़ याद करनी है, लेट से चोला एम्पायर का आर्ट एंड कल्चर, और यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उसके नोट्स हैं वो, अब वो रिवाइज करते हुए इसको फोल्ड कर लेगा, केवल उसको यहाँ क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो केवल वो क्वेश्चन देख के सोच रहा है, चोला देख के कि क्या इसमें था, मैंने क्या लिखा था, और फिर पलट के फिर आंसर देख रहा है, ओ ठीक है, मुझे इसमें से 4 चीज़ें याद आई, 2 चीज़ें याद नहीं आई। एक्टिव रिकॉल करोगे तो कम बार करना होगा, तो उसमें क्या है ना, फ्रस्ट्रेशन कम होगी, क्या मैं एक ही नोट्स पढ़े जा रहा हूँ, फ्रस्ट्रेशन कम होगी, रिकॉल ज़्यादा होगा, टाइम भी बचेगा। बट खराब पार्ट क्या है इसका, ये बहुत मेहनती प्रोसेस है, आपको दिमाग चलाना पड़ रहा है, और दिमाग चलाना किसको पसंद है? हमें चाहिए कि किताब में पन्ने पलटते रहें। आज सुबह ऐसा हो जाए कि मैंने 50 पेज रिवाइज किए, खुद को हम लोग कहते हैं ना, आज सुबह उठ के मैंने 3 चैप्टर मैंने स्पेक्ट्रम के 80 पेज पढ़ डाले, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं है। उससे अच्छा तुम एक्टिव रिकॉल करो, ठीक है ना? तो ये किया जा सकता है। ये तुम्हारे डाउट्स क्लियर हुए क्या? ओके, अब बात आती है 50-50 वाली। उनका ऐसा था कि अगर कोई चीज़ हमें 2 ऑप्शन आते हैं, 2 नहीं आते, फिर क्या करना है, ये तो था। तो ऐसे केसेस में मुझे लगता है तुक्का मारो। 50-50 में अगर तुम हो, एमसीक्यू में पहुंच गए 50-50 पहुंचना इज लाइक अ ब्लिस। आप आराम से उसमें जो मन करे, उनमें से अगर नहीं पता है तुक्का मारो, प्रोबेबिलिटी कहती है कि तुम्हें फ़ायदा ही होगा। अब ये मैं सोचो कि मैं फाइनल आंसर तक पहुंच क्यों नहीं रहा हूँ, फाइनल आंसर तक पहुंच क्यों नहीं रहा हूँ, इसके चक्कर में मेरी इसकी प्रैक्टिस थोड़ी कम थी, मुझे ऐसा डर लगता था, तो इसकी वजह से 2023 में मेरे 2-3 क्वेश्चन मुझे कॉस्ट भी किए हैं। मुझे लग रहा था कि बी या सी में से कोई है, और वो मैंने गोला मार के छोड़ दिया क्वेश्चन में, जो रियल एग्जाम था उसमें, और मैं बाद में जब घूम के आया तो मैं भूल गया कि ये इनमें से कौन से 2 वाले ठीक थे, मैं और कन्फ्यूज़ हो गया। इससे अच्छा मैंने उसी वक्त मार दिया होता तो एटलीस्ट 50% चांस ही ठीक होने की, और अभी मुझे एक भी याद नहीं आ रहा, अब मेरे 25% चांस रह गए केवल। तो 50-50 तक पहुंच गए तो अच्छी बात है। बात आती है जब आप 1/3 तक पहुंचे हो, लाइक आपने एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाया है और 3 बचे हैं, तब थोड़ा सा इशू है, तब गलत होने की चांसेस भी ज़्यादा हैं। फिर देखो तुम्हारा टोटल अटैम्प्ट कितना हुआ है, अगर टोटल अटैम्प्ट मान लो 60 क्वेश्चंस है, तो वैसे भी तुम नहीं निकालने वाले हो अभी ये वाला, तो इससे अच्छा तुम अपने अटैम्प्ट बढ़ा लो ताकि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। तो फिर ऐसे में तुक्के मारो, लेकिन ऑलरेडी 85 अटैम्प्ट कर चुके हो लेट से क्वेश्चंस, तो और एक्स्ट्रा करने का कोई नीड नहीं है। मेरा भी जो अटैम्प्ट था वो 85 के आसपास रहता था क्वेश्चंस प्रीलिम्स में। ओके, फिर एक है ये था कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन के साथ कैसे टैकल करना है। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, इसमें बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस आ जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपने क्वेश्चन का वो वर्ड देखा, उसी से मतलब रिलेटेड ही हैं 4 ऑप्शंस, तो मतलब तुमने इसमें से निकाल लिया यार ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, जो वर्ड एसोसिएशन लोग बोलते हैं। जैसे बायोफिल्म्स पे क्वेश्चन आया था, बायोफिल्म, तो बायोफिल्म नाम से नहीं लग रहा है कि बायो मतलब कोई एक लिविंग कीचर की कोई एक फिल्म मतलब की लेयर बन गई होगी, तो उसको देख के अगर ऑप्शन निकल रहा है तो वैसे वाले क्वेश्चन से तो फिर कर लो। आउट ऑफ सिलेबस, अगर प्योर आउट ऑफ सिलेबस है, केवल फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो उसमें अगर एलिमिनेट कर सकते हो अपने कॉमन सेंस से
तो करो, वरना छोड़ दो ऐसे क्वेश्चन। कोई तुम्हें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। और आउट ऑफ सिलेबस, देखो आउट ऑफ सिलेबस कम से कम क्वेश्चन आएंगे 30-35, ठीक है, 30 क्वेश्चन होंगे आउट ऑफ सिलेबस, 30 क्वेश्चन तुम्हें आते होंगे, ओके। और बचे हुए 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि बीच बीच का है मामला, कि 2 ऑप्शन आते हैं, 1 ऑप्शन आता है, ये सुना था यार, ये रिवाइज नहीं किया था इसलिए मेरे को याद नहीं आ रहा, होता है ना। तो वो वाले सबसे ज़्यादा ये होते हैं। आपको जो आते हैं तुम उस पर ध्यान दो, जो ये वाला पार्ट है इस पर ज़्यादा ध्यान दो। और जो आउट ऑफ सिलेबस वाले हैं, इसमें जो वर्ड एसोसिएशन या कॉमन सेंस से बन जा रहे हैं वो ठीक है, वरना छोड़ दो। तो एटलीस्ट मुझे लगता है इसमें से भी ना 15 क्वेश्चन आप कैसे ना तैसे करके सॉल्व कर लेते हो, तो आपके टोटल कितना हो जाएगा, 70 + 15, 85 तो भी आपका बैठ रहा है। और 85 इज़ अ वेरी गुड अटेम्प्ट, जैसा पेपर आ रहा है उसके हिसाब से, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ कि आउट ऑफ सिलेबस वाला। और भी कोई क्वेश्चन है प्रीलिम्स को लेके, तो वरना फिर मेंस की तरफ बढ़ो। मेंस में क्या है, मैंने मार्क्स इंप्रूव किए हैं 2023 से 24 में, खासकर जीएस में, चारों में। तो मुझे वो मुझे बताना है कि क्या क्या मैंने किया जिससे कि मार्क्स बढ़े हैं। तो तुम में से कोई मेंस की तैयारी अभी करता है या आंसर राइटिंग की है, कोई है? आंसर राइटिंग की है आप में से किसी और ने? आंसर राइटिंग की है। और पहले आप लोग ने मेंस लिखा है किसी ने? ओके, तो ये मेरे 2023 के मार्क्स लिखे हैं, ये 2024 के लिखे हुए हैं। मेजरली ये मैं इन चारों पे फोकस करने वाला हूँ, क्योंकि यही 4 हैं जो, एक तो हम लोग के बीच में कॉमन चीज़ है, जीएस तो सबको लिखने हैं, ऑप्शनल तो सबका अलग है। और इन चारों पे इसीलिए क्योंकि बाकी एसए और इंटरव्यू भी कॉमन है, लेकिन मुझे इसमें काफ़ी एवरेज मार्क्स मिले हैं। तो मुझसे अच्छा है तुम उस टॉपर को सुनो जिसके इसमें एटलीस्ट 130-140 आए हों, इंटरव्यू में 200 वो लगातार स्कोर कर रहा होगा, वो तुम्हें ज़्यादा बेहतर बता पाएगा, ओके। तो इन चारों में मेरा जो टोटल स्कोर था वो 400 से इंक्रीज होके 400 वाजा, ओके गुड स्कोर, बट 400 की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था 2023 में। मेरा सिलेक्शन हुआ था मेरा ऑप्शनल की वजह से, दैट वाज अबव 300 मार्क्स। लेकिन इस साल मेरे वो मार्क्स ड्रॉप हो गए, ऑप्शनल में मेरे 275 रह गए। तो बाकी का जो मुझे इस बार सिलेक्शन दिलाया वो जीएस के मार्क्स ने दिलाया, जो कि इंक्रीज होके 434 हो गए हैं आई गेस, ओके। तो यहाँ पे मैंने बाकी रैंकर्स के जीएस के मार्क्स लगाए हैं। तो 434 इज लाइक AR1 लानी, तो फिर 434 से आपका काम नहीं चलेगा। लेकिन आपको सिलेक्शन चाहिए, टॉप 100 में रैंक चाहिए, तो आप देखोगे उसी के आसपास स्कोर्स हैं, या कम ज़्यादा थोड़े बहुत, तो इतना स्कोर आपको लाना है। अब मैं इसमें, एक होता है कि जैसे आप लोग को पता होगा कि इंट्रो बॉडी कंक्लूजन लिखना होता है, सबको पता होगा आई गेस, है ना। या फिर आपको पता होगा कि डायमेंशंस में ब्रेक करना है, कीवर्ड्स डालने हैं, ये चीज़ें आपको पता हैं। तो मैं इसके एक लेवल ऊपर जा रहा हूँ। हो सकता है ये वीडियो तो अपलोड हो ही जाएगा, हो सकता है आज आपके अगर काम ना है तो जब आप मेंस लिख रहे होंगे तब ज़रूर आके देखना। तो अगर आपके मार्क्स सेचुरेट हो जा रहे हैं टेस्ट में या एग्जाम में, कि आप बार बार अटैम्प्ट दे रहे हैं और बढ़ नहीं रहे हैं, तो फिर आपको ये वीडियो ज़्यादा काम आएगी। तब मेंस को लेकर तुम्हारे कोई डाउट्स पहले से प्री कंसीव हो तो फिर वो आप पूछ सकते हो अभी के अभी, पहले उसको टैकल कर लेते हैं। मेंस को लेके कुछ है? अभी से प्रिपेयर करते हैं 2026 के अटेम्प्ट के लिए। तो अभी से हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए मेंस को लेके, मतलब Okay. आंसर राइटिंग की वहाँ तक पहुँचने तक वो बेस्ट हो जाए। ओके हाँ, तो अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो तुम्हें हेल्प करेगा। और किसी के मेंस को लेके डाउट्स बेसिक से बेसिक भी पूछ सकते हो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तुम ये भी पूछ सकते हो कि किस में लिखना होता है, कौन से पेन में लिखना होता है, कोई यहाँ पे जज नहीं करने वाला है, ठीक है। तो जैसे मेंस लिखते हैं तो पहले 2-3 दिन तो अच्छे से जाता है, तो अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ अच्छा नंबर आ रहा है। लेकिन जब उसके बाद 2-3 जो अटेम्प्ट देते हैं उसके बाद नंबर जब कम आता है तो थोड़ा डिमोटिवेट होते हैं। तो सर अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें? ओके, तो कम मार्क्स क्यों आ रहा है, अगर तुम उसकी जड़ पे जाओगे तभी तुम्हारा मोटिवेशन वापस आएगा। बाकी तो वरना वो वाला यूट्यूब वाला मोटिवेशन होगा राजा बनने वाला, उससे तो देखो नहीं होने वाला। तो Consistency मार्क्स कैसे आए? इंप्रूव करेंगे? हाँ यही तो हुआ ना क्वेश्चन कि कंसिस्टेंसी कैसे आएगी। तो इसमें 2 फैक्टर्स हैं। जो चेक कर रहा है कॉपी, उसकी पर्सपेक्टिव से भी सोचो, हो सकता है उसने भी उतने अच्छे से तुम्हारा आंसर नहीं पढ़ा, तुम्हारा आंसर हो सकता है अच्छा हो, बट टेस्ट की इवेल्यूएशन पे आप डिपेंड नहीं हो सकते हो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस साल एक XYZ कोचिंग है जिसने मुझे फ्री में टेस्ट सीरीज दी थी, क्योंकि मेरा 2023 में सिलेक्शन हो गया था। तो उसकी मैंने टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन लगा रहा हूँ, वो मुझे 80s में मार्क्स दे रहे हैं हर पेपर में, 80s, 85, 90 एट मैक्स दे दिया इतने में। तो ये तो मेरे लास्ट ईयर से भी कम हो गए। अगर मैं उनकी बातें मानता या उनके फीडबैक लेता तो फिर वो फिर मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं होता, लिस्ट में ही नाम नहीं होता। मैं भी एक चीज़ बताता हूँ कि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डिमोटिवेट होने के भी अगर रियल रीज़न ये है कि तुम्हारा आंसर राइटिंग क्वालिटी डाउन हो रहा है तब ठीक है, लेकिन डिमोटिवेट इस वजह से मत होना कि तुम्हें मार्क्स किसी ने कम दे दिए हैं। इसीलिए मैं आंसर लिखता था, तो वहाँ पे अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे, मतलब मैंने मान लो हेडिंग है, आंसर के अंदर हेडिंग जो होती है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टार बना देता था कभी कभी, केवल वो डिफ्रेंशिएट हो जाए। अगर मैं ज़्यादा लिखा हुआ तो वो दिख जाए कि यहाँ पे नई हेडिंग शुरू हो रही है। उस चीज़ को लेके मुझे बोला गया कि ये मत करो वरना पेनल्टी लग जाएगी।
या फिर ऐसी ऐसी चीज़ें कि तुमने इंट्रोडक्शन क्यों नहीं लिखा, इंट्रोडक्शन नहीं लिखा इसलिए 3 मार्क्स चले गए। कहाँ पे यूपीएससी के पूरे नोटिफिकेशन में कहाँ लिखा हुआ है कि मुझे इंट्रोडक्शन लिखना ही है या कंक्लूजन लिखना ही है? वो मेरे पे डिपेंड करता है ना, मुझे अब समझ में आ रहा है तो लिखूंगा, टाइम है तो लिखूंगा, वरना नहीं लिखूंगा। ये वाला पार्ट है, तो डिमोटिवेट नहीं होना है, मैं पहले ही बता दूं, ठीक है। दूसरा पार्ट है कि कंसिस्टेंसी लाना और मार्क्स इंप्रूव करना। उसको लेके मैं भी जो बताऊंगा वो चीज़ें इंप्लीमेंट करोगे तो आई थिंक बेटर होगा तुम्हारा मार्क्स और ओवरऑल आंसर राइटिंग स्किल्स। और कोई डाउट्स है अभी? हाँ, नाम भी बताइएगा आप। सर मेरा नाम आयुष्मान है। जी। मेरा मतलब कंसर्न ये है कि मुझे अपनी पूरी जर्नी को स्ट्रक्चर करने में दिक्कत हो रही है। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कितने समय में क्या चीज़, कौन सा सब्जेक्ट ख़त्म करना है। मतलब ज्योग्राफी के साथ शुरू हुआ तो वो मतलब 1 महीने से ज़्यादा चला जा रहा है, ओके। तो शेड्यूलिंग नहीं हो पा रही है। मतलब उसमें आपने दिक्कत आपका कौन सा अटेम्प्ट है? पहले तो 2025 देने वाले थे, बट ओके। 26 में देंगे। और आप सेल्फ स्टडी करते हो या कोचिंग है? हाँ नहीं, फाउंडेशन बैच मैंने लिया था। ओके। फाउंडेशन वो बैच में तो वो तो आपका सिलेबस अपने आप लेके चलेंगे, मतलब साथ ही साथ तो आपको, अगर आप बस क्लासेस कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो स्पीड तो मेंटेन रहेगी। तो आपको हाँ। ऐसा क्यों लग रहा है कि ज्योग्राफी में ज़्यादा टाइम लग रहा है और इसमें कम लग रहा है? सर मैं मास्टर्स भी साथ में कर रहा था, तो दोनों के बीच में जगल करने में दिक्कत हुई थी काफ़ी, तो इसलिए कोचिंग भी रेगुलर नहीं हो पाई और मास्टर्स में भी समय सही से नहीं दे पाया। अभी तो देखो कितना पर्टिकुलर कंसर्न है। अब इस पे मैं अगर कुछ बताऊं तो एक तरीके से वो नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि आपका कंसर्न आपको ज़्यादा पता है, कितना वहाँ आप टाइम दे सकते हो, कितना यहाँ पे। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है, जैसे आपको अगर लग रहा है कि सब्जेक्ट्स में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप थोड़ा कट शॉर्ट कर सकते हो कुछ सब्जेक्ट्स को। फॉर एग्जाम्पल एंशियंट मीडिवल, खासकर आर्ट एंड कल्चर में कभी कभी बहुत डीप में पढ़ाते हैं कि ये हो गया, और बहुत ज़्यादा तरीके के डांस सिखा दिए और थिएटर सिखा दिए, ये इतने सब याद कर लो। अब देखो कोचिंग के पर्सपेक्टिव से क्या है, वो अपना काम कर रहे हैं ना, वो तो चाह रहे हैं आपको बेस्ट चीज़ दें, और जो टीचर है वो रिसर्च करके इस बात पे पूरा वो अपना टाइम दे रहा है वो। लेकिन तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें उसमें से क्या क्या काम आएगा। इन द बेस्ट के सिनेरियो तुम पूरा एब्जॉर्व कर लो तो बेस्ट है फिर, लेकिन बेस्ट के सिनेरियो पे हम नहीं जी रहे हैं ना, हम पे लिमिटेड टाइम है। किसी का हो सकता है 3 महीने बाद प्रीलिम्स आ रहा है, तो वो इतने कम टाइम में कैसे करेगा, या आपके पास टाइम की कमी हो गई है। तो मैंने जब जैसे बताया कि एंशियंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर के लिए आप लूसेंट पे आप प्रेफर कर सकते हो, तो आप फिर वो छोड़ के आप लूसेंट कर लो। इससे भी सिलेक्शन हुआ है ना, ऐसा तो नहीं है कि विजन का कोर्स या कोई भी कोचिंग होगा तो आप उसका पूरा करोगे। आप अपने टाइम के हिसाब से निकालो, दे आर गिविंग यू द बेस्ट, बट आपको अपने टाइम का भी हिसाब रखना है। आप सब कुछ करोगे तो हो सकता है पूरा ना कर पाओ या रिवीजन ना कर पाओ, तो वो आपको फ़ायदा नहीं करेगा। बट स्टिल आई वुड से दैट जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, लाइक ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया और इकोनॉमी हो गया, जिनमें कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, वहाँ पे आप पूरा का पूरा कोर्स करो, जो भी कोचिंग का हो, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट्स आपको काम आएंगे, और खासकर वो ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन देंगे जो आपको मेंस में भी काम आएगी, है ना। लेकिन इन सब सब्जेक्ट में जो कि फैक्चुअल होते हैं प्योर, तो उसको आप स्किप कर सकते हो और अपना उसका शॉर्ट तरीका है उसकी तरफ जा सकते हो। बाकी मेंस को लेके कोई डाउट है तो अभी बताओ, आपको है? हाँ। Morning, sir. Sir, my name is Trembak Mishra. Okay. And sir, I am thinking to how to frame the answer in mains ओके। and how to improve the marks in essay. ऐसे में तो देखो मेरा खुद क्रॉस नहीं हो रहा है है ना ऐसे के लिए, बट आई विल टेल यू कि किसका आप Sir, I किसको want to अप्रोच know करो। some key points to put on the essay papers. ओके, ऐसे में देखो, मैंने जब मेरे दूसरी बार भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आए, तो मैंने पता किया कि जो लोग के अच्छे आ रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। तो देर वॉज वन ऑफ माई फ्रेंड हु ऑल्सो गॉट डबल डिजिट रैंक दिस टाइम। उसके एक ऐसे में कंसिस्टेंटली अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो व्हाट ही सेड वाज कि कीप इट वेरी वेरी सिंपल। हम लोग वैसा चाहते हैं ना, एनेक्डोट ऐसा डाल दें कि मतलब कहानी ऐसी हुक कर दें कि बस वो समझे कि यार ये क्या लिख दिया है, फिर मैं कीवर्ड्स में हेडिंग ऐसी डालूं। एंड ही वाज लाइक वेरी सिंपल। उसके रीजंस पे चले जाओ, कोई चीज़ लिखी हुई है, किसके वाई क्या है, वाई वाला क्वेश्चन पूछ लो उससे, या फिर चले जाओ वॉट पे चले जाओ कि ये होता क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि लेट्स से ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट चीज़ है, ऐसा करके कुछ ऐसे है। अब ये चीज़ पे तुम्हें लिखना है। हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे मैं बहुत कहानी बनाऊँ और कुछ बहुत बढ़िया कर दूँ। आप बेसिक से लिख दो ना कि एक इंसान था गांव में, एक खड़ा हुआ था, कोई फार्मर था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे अपनी जो फार्म का प्रोड्यूस है उसका पैसा बढ़ाए। फिर उसको पता चला, शहर से कोई आदमी आया, उसने बोला कि ऑर्गेनिक, हम लोग तो ऑर्गेनिक ही खाते हैं, भले हमें 3 गुना पैसा देना पड़े। तब उसको लगा कि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करूँगा जिसमें मेरा कम पैसा लगेगा तो मुझे ज़्यादा प्राइस भी मिल रहा है। ओके चलो मैं ये ट्राई कर सकता हूँ। तो वहाँ से आप स्टोरी शुरू कर सकते हो। फिर बहुत बेसिक कि फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है,
है ना, फिर बोलोगे कि क्यों अचानक से इसकी डिमांड बढ़ गई। जो बेसिक दो लोग आप और मैं बात करेंगे मिश्रा जी, तो आप मेरे से ये तो बोलोगे भाई इतनी क्यों डिमांड बढ़ गई, तो मैं बोलूँगा ये रीज़न है। फिर मैं कहूँगा लेकिन यार ये पहले तो नहीं था, पहले क्यों नहीं था, तो तुम उस पर 2-3 पॉइंट बोलोगे पहले ये होता था। अब वैसा करके लिखो। हम लोग क्या है ना बहुत फैंसी के चक्कर में चले जाते हैं, इसीलिए मार्क्स नहीं मिले। मेरे साथ भी यही हुआ है। मेरे 102 आए तो मैंने सोचा मुझे कुछ फैंसी करना होगा, तो ज़्यादा से तो उसने मेरे को 6 मार्क्स और दे दिए। लेकिन ये इससे अच्छा मेरे को 26 मार्क्स बढ़ जाते अगर मैं बहुत सिंपल बेसिक लिखता। बाकी आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू टेल यू अबाउट एसे। आई कुड टेल यू हाउ टू इम्प्रूव मार्क्स इन जीएस। तो इसीलिए बाकी मैं कुछ टॉपर्स के नाम बताऊंगा अगर मुझे अभी रिकॉल हो जाता है, जिन लोग के एसे बहुत सिंपल प्लस इफेक्टिव थे और मार्क्स बहुत अच्छे आए थे, तो तुम उनको देख सकते हो। Sir, how to frame the answer of हाँ, GS? उस पर अभी हम लोग बात करते हैं। ओके, इसके आगे ही है वो सब। मेंस को लेकर और किसी के क्वेश्चंस? एथिक्स। एथिक्स में क्या? How to write answer in ethics? अब देखो वही है कि ये बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है, तुम कोई स्पेसिफिक एग्जांपल दो या how, कुछ। how many examples are, what are the ways to improve marks in ethics? Like, I'm not understanding after reading once also ethics में क्या करना है अभी. ओके, एथिक्स में ना सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि एथिक्स में आप अपनी थिंकिंग पैटर्न को थोड़ा एथिकल बनाने की कोशिश करो अभी से। केवल ऐसा नहीं होगा पेपर पे मेरा अलग पर्सनैलिटी है, रियल लाइफ में मेरी अलग पर्सनैलिटी है, ऐसा नहीं रखोगे तो तुम्हें फ़ायदा होगा। मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि जो लोग एथिक्स में मार्क्स लाते हैं बहुत एथिकल हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट स्टिल अभी हम यहाँ बैठे हैं और लेट्स आप बाहर से अभी अंदर अभी क्लास में आए हो और आपने रोड पे कोई चीज़ देखी कि कोई मान लो ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन कर रहा है, या हो सकता है कोई लड़का तुमने देखा जो कि किसी लड़की को स्टॉकिंग कर रहा था, तो तुम मन ही मन सोच तो सकते हो कि देखो इसने यहाँ पे मतलब पब्लिक डिसेंसी का ख्याल नहीं रख रहा है, ये फिर वुमेन डिग्निटी का ख्याल रखिए। जो कीवर्ड्स दिमाग में डालो कि जब तुम जब वो चीज़ वैसे भी सोच रहे हो, तुम सोच रहे हो कितना गंदा आदमी है, लेकिन उसकी वजह तुम थोड़ा एथिकल कीवर्ड्स में सोच लो उस बात को, उससे क्या तुम्हारी दिन भर प्रैक्टिस होगी। तुम ये हर जगह कर सकते हो। थोड़ा सा इंसेन लगेगा ये, लेकिन ये इतना हेल्प करता है। मैं अभी कीवर्ड सिखाऊंगा मेरे कॉपी में, तुम कहोगे इतने कीवर्ड्स कहाँ से आ रहे हैं? यहीं से आ रहे हैं कि मैं डेली सोच ही कीवर्ड्स में रहा हूँ कि अभी अगर कुछ चीज़ हो गई यहाँ पे, अगर लेट से ऐसा होना लेकिन आग लग गई, तो यहाँ से हम लोग बाहर निकलेंगे, तो इवैक्यूएशन प्लान, तो वहाँ पे मेरे दिमाग में आएगा सेफ्टी हो गया, या फिर सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पे ये नहीं होगा कि बिल्डिंग जल गई, सबसे बड़ा होगा कि इंसान की जान, ह्यूमन लाइफ्स मैटर, वो वाली चीज़ें। तो आप ये है कि इन सब कीवर्ड्स को सोचना जब शुरू करोगे तो आपके वो आंसर में अपने आप निकलेगी, और आंसर में निकलेगी तो आंसर अच्छा लगेगा। आप और मैं सेम ही आंसर लिख रहे हैं, देखा जाए आप अपना और टॉपर का आंसर देखना। एग्जाम्पल्स के अलावा एथिक्स में बात सेम ही लिखी होगी, क्योंकि एथिक्स हमें भी पता है कि सही क्या है गलत क्या, हमें पता रहता है मोटा मोटा, लेकिन वो क्या है कीवर्ड्स भी डालेगा, वो थोड़े एग्जाम्पल्स डालेगा, वो अंडरलाइन वगैरह कर देगा, उसको ज़्यादा मार्क्स थोड़े ज़्यादा मिल जाएंगे। लेकिन अभी मैं उसको अपनी कॉपी दिखाने वाला हूँ, तो मैं ये भी बताऊँगा कि एथिक्स में क्या कर सकते हो एक्स्ट्रा जिससे कि मार्क्स खींचे जा सकते हैं। ओके, ये मेरे कुछ सोर्सेज थे, ये मैं PDF शेयर कर दूंगा। तो ये मेरे मेंस के सोर्सेज हैं GS 1 से लेके 4 तक के। ओके, तो मैं इस शेयर कर दूंगा, तो आप लोग इसमें देख सकते हो। ज़रूरी नहीं है यही फॉलो करना, सबका अलग अलग होता है, लेकिन चूंकि ये पूछा जाता है हर बार, तो मैंने अभी अपना यहाँ पे बता दिया है। ओके, तो मैंने GS 4 में पहले से लिखा जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि थिंक एथिकली और रिवाइज लिस्ट ऑफ अब मैंने एक 3 या 4 पेज में केवल एथिक्स के कीवर्ड्स ही लिखे हुए हैं, कोई इनमें कनेक्शन नहीं है आपस में, बस कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, और बहुत छोटे छोटे लिखे हैं, तो एक पेज पे 100 कीवर्ड्स हैं, ऐसे 3-4 पेजेस हैं। और वो कीवर्ड्स में इतनी बार देखते रहता हूँ, सुबह देख लिया, कभी जिस दिन टेस्ट लिखे उस दिन सुबह देख लिया, तो उनमें से मैं कह रहा हूँ 30% भी आपका रिटेंशन रेशियो होगा, दिमाग में वो कीवर्ड सेव्ड होगा, तो वो कहीं ना कहीं पेपर में निकल जाएगा और वही आपको एज दिलाएगा। ओके, अब जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जिसको मैंने एसोसिएट कर रखा था कि कहीं पे मुझे ह्यूमनिज्म लिखना होगा, तो मैं ह्यूमनिज्म डैश करके लिख दिया जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर वैल्यू, क्योंकि वो बहुत ह्यूमनिज्म की बातें करते थे। तो वहाँ जहाँ पे भी मुझे ह्यूमनिज्म लिखना होगा, वहाँ पे मैं नीचे एरो करके रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम लिखूंगा, तो लगेगा कितना स्पेसिफिक चीज़ लिखी है इसने, है ना। सिमिलरली जो गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं, जैसे टॉलरेंस की कहीं बात लिखी होगी, तो मैं टॉलरेंस में ब्रैकेट में गांधीयन प्रिंसिपल लिख दूंगा, ताकि वो पढ़ने वाले को ऐसा लगे कितना स्पेसिफिक है, जबकि मैंने कोई नई बात नहीं लिखी है। ये सब आपको अपने एग्जामिनर को, इवैल्यूएटर को फील कराना है कि आपने एक स्टेप ज़्यादा किया है, जो मेरे से पिछली कॉपी गई है या मेरे जो बात जो जाएगी उससे, बस इतना उसको फील कराना है। उसके लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। वो अभी अब देखो, ये मेरा मानना है, अब हो सकता है आप लोग इससे करो चाहे ना करो, कि ये यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो आप शॉर्ट टॉपर हो। ये क्या है कि आपका प्रेजेंटेशन का गेम भी बेस्ट है, आपका कंटेंट का गेम भी बेस्ट है, और आपके फ्रेमवर्क्स तैयार हैं। फ्रेमवर्क्स आपको समझ में आते हैं होंगे ना, कि कोई क्वेश्चन पता है तो किस फ्रेमवर्क में सोचना है उसको, ताकि बहुत सारे पॉइंट्स जनरेट हो जाएं। ये काम आता है जब आपको क्वेश्चन नहीं पता है,
तो फ्रेमवर्क्स काम आएंगे कि किसी ना किसी डायमेंशन में सोचूंगा तो कुछ कुछ पॉइंट जनरेट हो जाएंगे, हो जाएगा। कंटेंट काम आता है जहाँ पे आप पे ऑलरेडी कंटेंट है, पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे आपका कंटेंट इतना स्ट्रांग होना चाहिए जो कि बाकी लोग नहीं लिख रहे हैं। आपको एज लेना पड़ेगा। मैं अगर आपको ये पूछूं कि कैग में या फिर इलेक्शन कमीशन में क्या क्या इश्यूज़ हैं, आप लोग इन जनरल जो पॉइंट्स बोल रहे होगे वही इनके कॉपी में लिखा होगा, वही आपकी कॉपी में लिखा होगा, वही किसी और की कॉपी में, बाहर भी कोई होगा उसकी कॉपी में लिखा होगा। तो एज कहाँ पे लेना है मुझे, कहीं से एज निकालना पड़ेगा। फिर चाहे आप उसके लिए चैट जीपीटी, अब कंटेंट में मैंने इतना ज़्यादा मैंने यहाँ लिखा नहीं, लेकिन चैट जीपीटी यूज़ किया था। मैं उसको बोलता था अलग से कि मुझे कोई ऐसी बात बताओ इलेक्शन कमीशन के इशूज़ के बारे में जो बाकियों को नहीं पता, तो वो ढूंढ के लेके आता था कि देखो ये चीज़ एक बार हुई थी, 2012 की बात लिख देगा या 13 की लिख देगा कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो मैं उसका ही शॉर्ट वर्जन अपने नोट्स में डाल लूँगा। जो कॉपी चेक करेगा वो कहेगा देखो उसको ये पता है, बाकियों को पता ही नहीं है ना। और आप अगर इनमें से कोई 2 चीज़ें अच्छे से कर सकते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये है, टॉप पर बनोगे कि नहीं, आईएएस में आएगा कि नहीं वो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और वहाँ पे अगर आप बीच वाले में आते हो तो पक्का टॉपर बनोगे, ये मैंने ऑब्जर्व कर लिया है। बहुत लोगों की कॉपी मुझे देख के लग जाता था कि इसका तीनों पार्ट सॉर्टेड है, उनकी रैंक्स मतलब डबल डिजिट में आई हैं, तो वो चीज़ वर्क कर रही है। यहाँ पे मेंस में लक का गेम बहुत कम है, प्रीलिम्स में लक का गेम होता है। ओके, अब आता है पहला पार्ट है प्रेजेंटेशन। मैं प्रेजेंटेशन पे इसलिए कह रहा हूँ जैसे आप लोग को ऐसा लग रहा होगा मेरे आंसर की क्वालिटी अच्छी नहीं, जैसे आपने बोला मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, है ना, आपने बोला इशू हो रहा है लिखने में। सबसे आसान चीज़ है उसको प्रेजेंटेशन उसका ठीक कर दोगे ना, सबसे आसान चीज़ है, क्योंकि आपको कुछ नहीं याद करना पड़ा, ना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ा, और आपके मार्क्स इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। अब प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीज़ आपको इंप्रूव करनी है, इसके लिए मैं एक सवाल पूछूंगा, आप लोग अपना आंसर बताइएगा। मैं कहूँ कि इंडिया में पॉवर्टी परसिस्ट क्यों करती है, तो इसका जो आप पॉइंट्स लिखोगे उसमें से पहला पॉइंट क्या होगा आप लोग बताइएगा। कौन कौन बताना चाहेगा, कोई एक पॉइंट। अनएम्प्लॉयमेंट, ओके। लैक ऑफ, ओके। ओवर पॉपुलेशन, लैक ऑफ रिसोर्सेज, ओके। और करप्शन, ओके। हाँ, मालन्यूट्रिशन, ओके। पर कैपिटा इनकम तो मतलब वो इंडिकेटर है ना पॉवर्टी का, इट इज़ नॉट अ रीज़न फॉर इट। अब देखो इन सब में जो बेस्ट आंसर था वो था कि ओवर पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज। बट इन सब से भी जो बेस्ट था, अगर आप लोग सोचते कि कॉलोनियल लेगेसी, कि उन लोगों ने, हम उन लोग के आने के पहले हम लोग अच्छे खासे, हम लोग इतने गरीब नहीं थे, हमारे पॉवर्टी रेट इतने हाई नहीं थे। उनका जो ड्रेन थ्योरी था, हम लोग ने जो बताया कि ये लोग यहाँ से ड्रेन करके ले गए, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई, इंडस्ट्रीज़ खत्म हो गई, है ना, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ कॉलोनियल टाइम पे जो, और जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हुई, टेक्सटाइल खत्म हुई, शिप बिल्डिंग खत्म हो गई, हम लोग साइंस एंड टेक में पीछे हो गए। वो ही अभी तक हम ठीक करते रह जा रहे हैं। अभी 75 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हम उसी को ही ठीक कर रहे हैं, और हम लोग ठीक कर लेंगे, हम लोग एक पॉजिटिव डायरेक्शन में। बट वो सबसे बड़ा रीज़न है हमारी पॉवर्टी का। बट स्टिल इन सब में बेस्ट था कि ओवर पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज। अब मैंने ये चीज़ इसलिए पूछी कि आपके किसी के भी पॉइंट गलत नहीं थे, किसी के भी, लेकिन आप पहला पॉइंट क्या लिखते हो ना, ये इंप्रेशन दिखाते, ये प्रेजेंटेशन का खेल है कि तुम्हें पता है कि नहीं। अगर जैसे आपने करप्शन बोला, आप पहला पॉइंट करप्शन लिखोगे ना, तो पढ़ने वाला कहेगा ये करप्शन और ये सब की बातें लिखने वाला। आगे आपने हो सकता है बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखे होंगे, आगे आपने लिखा होगा कॉलोनियल लेगेसी लिखा होगा, और ये लिखा होगा पॉलिसीज का इंप्लीमेंटेशन कैसे गलत हो रहा है वो लिखा है। लेकिन चूंकि आपने पहले दूसरे पॉइंट ऐसे लिख दिए जो कि बहुत जेनरिक थे, तो पढ़ने वाले को लगेगा कि आपको बहुत कम आता है, और वो उस पर टाइम नहीं है, उसको दिन की बहुत कॉपी चेक करके घर पे जाना है, तो वो बहुत एवरेज मार्क्स दे देगा। सेम चीज़ टू है टेस्ट सीरीज़ के लिए भी, कि वो फिर क्यों पढ़ेगा पूरा, उसको लग गया, उसको इंप्रेशन मिल गया कि इसको कम आता है, या इसका मतलब कि हिला हुआ है, इसका ये जो पूरा इसका कॉन्सेप्ट है पॉवर्टी को लेके इसको अच्छे से पता नहीं है, तो वो इसलिए मार्क्स कम देगा। तो प्रायोरिटाइजेशन ऑफ पॉइंट्स, पहले कौन सा पॉइंट लिखना है, इन चीज़ों पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो और इस पर लो हैंगिंग फ्रूट है, मैंने जो बात बोली आपको सबको पता है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था सबको पता है ना, किसको नहीं पता, आपके नोट्स में भी होगा, लेकिन वो मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स में तो हम लोग को एसोसिएट नहीं कर पाए पॉवर्टी से। ओके, तो मुझे लगता है अब प्रेजेंटेशन में क्या क्या चेंजेस आप ला सकते हो, मैं उसको लेके बताता हूँ, मार्क्स अगर इंप्रूव करने हैं। जैसे पहला तो है कि डिमांड मिसमैच जो है वो तो सबसे खराब। अब ये वैसे देखा जाए तो प्रेजेंटेशन का खेल नहीं है, ऐसा लगता है हमें कि डिमांड मिसमैच तो कंटेंट का इशू हुआ। डिमांड मिसमैच कई बार ऐसा होता है, जैसे आपने करप्शन लिख दिया ना, तो आप पढ़ने वाले को लेगा इसने पॉवर्टी पे क्वेश्चन ही नहीं लिखा, इसने गवर्नेंस पे लिख दिया, शायद उसके साथ परसीव हो सकता है कि डिमांड मिसमैच हो गया है। आपको पहले सवाल से, आपको जो हेडिंग भी सब हेडिंग डालनी है ना, भले ही आपको आता ना हो, लेकिन सब हेडिंग ऐसी डालो कि लगे कि तुम्हें वही लिखने वाले जो उसने पूछा है, उसको परसीव कराओ। डिमांड उसको बोलो कि मैंने मीट किया है, एटलीस्ट वो 2-3 मार्क्स तो दे देगा अगर नहीं भी आता होगा। पहला पॉइंट ऐसा लिखो जो कि डिमांड से सबसे ज़्यादा क्लोज है, भले कम पॉइंट्स लिखो। ओके, अब इस चीज़ पे अब ये पूछोगे इसको कैसे करना है, तो वो प्रैक्टिस ही करनी है। हर बार जब भी आंसर लिखते हो तो सोचो क्या ये बेस्ट पॉइंट था, और नहीं था तो फिर कौन सा पॉइंट ऊपर आना चाहिए था। कुछ नहीं तो चैट जीपीटी को पूछ लो, फ्री वर्जन तो है ही है ना। मुझे लगता है डिमांड मिसमैच तो मतलब
बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है ना। आप अगर डिमांड मिसमैच कर दिए तो वो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वो 0 मार्क्स देते हैं रियल एग्जाम में, क्योंकि उन पे टाइम नहीं है तुम्हारी कॉपी पढ़ेंगे। वो कहेंगे डिमांड 0 है। मतलब एक बहुत पुरानी वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे आंसर राइटिंग को लेके, उसमें जो लोग चेक करते हैं कॉपी, उसका खुद का एक बहुत ही वैसे मतलब 140p वाली क्वालिटी में वीडियो है, जिसमें वो बता रहा है कि हम लोग सबसे पहले डिमांड चेक करते हैं और हमें लगता है कि जो पूछा वो नहीं बताया तो हम वो काट देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा वो उस वीडियो में बोला है। तो वो मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि डिमांड मिसमैच बिल्कुल नहीं रखना है। ओके, अब ये मेरे 2023 की एक कॉपी है। 23 वाले में जब मैं तैयारी करता हूँ, वन ऑफ द अर्लीस्ट कॉपी है ये। मैंने इसलिए रखी है कि गलतियाँ क्या है इसमें, है ना। ये कोई अच्छी कॉपी नहीं है, इसको आइडियलाइज मत करना। अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या है, आप लोग पढ़ो। पॉवर्टी कैन नॉट बी एलिमिनेटेड विदाउट रिड्यूसिंग द सोशल एक्सक्लूजन ऑफ द वल्नरेबल सेक्शन। ओके, कमेंट। अब ये बोल रहा है कि सोशल एक्सक्लूजन को रिड्यूस किए बिना पॉवर्टी एलिमिनेट हो ही नहीं सकती है। ठीक है भाई, अब कमेंट लिख दिया मैंने, इसमें कुछ बात लिखी पॉवर्टी पे। फिर मैंने ये, इसका मुझे नहीं लगता इंट्रोडक्शन कुछ मार्क्स है, ये बस ऐसा फैंसी चीज़ है, इसका कोई मार्क्स नहीं है। फिर मैंने पहला डिमेंशन लिखा रिलेशन बिटवीन पॉवर्टी एंड सोशल एक्सक्लूजन। ये फिर भी काफ़ी हद तक डिमांड को एड्रेस कर रहा है कि हाँ यार सोशल एक्सक्लूजन और पॉवर्टी में क्या लिंकेजेस है। मैंने कुछ ये बनाया है जो कि बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी दिखने में ठीक है, यहाँ तक वो टिक कर देगा। इसके बाद देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, एलिमिनेटिंग द सोशल एक्सक्लूजन, कि कैसे एलिमिनेट करेंगे। और मैं रीजंस मैं वो लिख रहा हूँ कि कैसे एलिमिनेट करेंगे, मैं उसके वो तरीके पे बता रहा हूँ, वे फॉरवर्ड है। कहाँ पे उसने पूछा कि उसकी हटाना है मेरे को, वो बस ये कह रहा है पॉवर्टी और इसमें लिंकेज है, पॉवर्टी कैन नॉट बी एलिमिनेटेड विदाउट रिड्यूसिंग सोशल एक्सक्लूजन। ये बस ये कह रहा है कि इसको हटाए बिना ये होगा नहीं। वो ये थोड़ा ना कह रहा है इसको हटाएंगे कैसे, दो अलग अलग क्वेश्चन है। लेकिन उस समय मुझे ये पता नहीं था, इस पर मैंने इंप्रूव किया है। इसको मैं कह रहा हूँ कि डिमांड मिसमैच करोगे, यहाँ पे वो तुम्हें 0 या फिर हो सकता है 0.5 नंबर देकर पकड़ा देगा। यहाँ पे मेरी पहली बात हेडिंग होनी चाहिए थी कि जो ये हेडिंग है ना, इसका ही थोड़ा सा सब तरीके का होना चाहिए था कि हाउ जो क्वेश्चन लिखा हुआ वही लाइन एक तरीके से लिख देनी चाहिए थी मुझे, कम से कम उसको ऐसा लगे कि इसने डिमांड मीट किया है। और जो पॉइंट्स हैं वो तो बिल्कुल ही और हटे हुए हैं, क्योंकि ये मैं लिख रहा हूँ एटीट्यूडनल चेंज की ज़रूरत है, स्कूलिंग और फैमिली सेंसिटिविटी करो, और ये वल्नरेबल सेक्शन को अफर्मेटिव एक्शन करो। वो पूछ ही नहीं रहा था ये सब। वो कहता है दोनों में क्या लिंकेज है, तो क्या लिंकेज होगा, सोशल एक्सक्लूजन की वजह से क्या होगा, जो इंसान गरीब है उसको कभी एक्सेस ही नहीं मिलेगा जो वेल्दी को एक्सेस है। पे ये दोनों में वो है कि इसको हटाए बिना ये नहीं हटेगा। फिर दूसरा और कोई बता दो कि जो सोशली एक्सक्लूडेड होते हैं वो इन जनरल फिजिकली भी एक्सक्लूडेड होते हैं, कि जैसे स्लम्स में रहेंगे, है ना, आपने फिजिकली भी उनको एक्सक्लूजन कर दिया। इस वजह से वहाँ पे बीमारियाँ हैं और उनको बेचारे को हेल्थ कंसर्न्स हैं और वो विशियस साइकिल में फंसे हुए हैं। इस वजह से वो अभी भी पुअर है, पॉवर्टी परसिस्ट कर रही है। ऐसे आप उनको कैसे भी लिंक करो, उसको ये चाहिए था, ये कर दोगे तो मार्क्स दे देगा। और ये उतना कठिन नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ओके, ये वाली बात आपको समझ में आ रही है? किसको डाउट है क्या? ओके, ये सबसे लो हैंगिंग है, क्योंकि इसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, मैंने बस डिमांड सही पकड़नी है। अब इसमें ये ऐसा मैं कर रहा हूँ तो इवेल्यूएटर मेरे को बोलेगा भाई क्या लिख रहा है भाई तू, है ना, ये पूछा ही नहीं गया था। और वो मेरे को यहाँ पे 0 मार्क्स या 0.5 मार्क्स देके आगे बढ़ जाएगा और मैं सोचता रहूँगा मैं तो कितना अच्छा, देखो दिखने में तो आंसर बुरा नहीं लग रहा है, हैंडराइटिंग भी ठीक है, अंडरलाइन कर रखा है, एग्जाम्पल लिख रखे हैं, और मैं सोचता रहूँगा यार मैं तो अच्छे लिख रहा हूँ, मार्क्स नहीं आ रहे। मार्क्स इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि मैंने डिमांड मीट नहीं करी। अब ये मैंने ChatGPT का आंसर निकाला था, मैं ये इसीलिए निकाला था कि आप लोग को ऐसा लगता है कि इतना कौन सोच पाएगा बार बार। तो ChatGPT बैठा हुआ है, उसको पूछो, उसको अलग से पूछो कि मुझे UPSC टाइप का आंसर दो, क्रिस्प आंसर दो, कंसाइज आंसर दो, वो निकाल के देगा। हेडिंग बना के इतने पॉइंट उसने निकाल के दे दिए मुझे कि सोशल एक्सक्लूजन को रिड्यूस किए बिना पॉवर्टी क्यों नहीं एलिमिनेट होगी, इतने रीजन दे दिए उसने। लैक ऑफ पॉलिटिकल वॉइस एंड रिप्रेजेंटेशन, अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज, इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन, पता नहीं क्या क्या दे दिया। तो बता रहा हूँ कि आप ChatGPT का यूज़ करना शुरू करो मेंस में। ओके, अब ये एक क्वेश्चन था। अब ये है, मैं प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ, अब ये एक पॉजिटिव की डायरेक्शन में है, ऑल्दो ये आंसर अच्छा नहीं है, बस मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन कैसे आप बेटर कर सकते हो। क्वेश्चन यहाँ पे था कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप हैज स्टैंडर्ड ओवर टाइम एज द कंट्रीज टुडे शेयर कॉमन कंसर्न्स, ठीक है, और डिस्कस। अब यहाँ पे है कि एक तो ये स्टैंडर्ड है कि ये बोल रहे हैं कि स्ट्रेंथनिंग हुई है और क्योंकि इन कंट्रीज़ के कॉमन कंसर्न्स हैं, तो स्ट्रेंथनिंग और कॉमन कंसर्न्स का लिंकेज बताना था इसमें, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में सोशल एक्सक्लूजन और पॉवर्टी का बनाना था। अब इसमें 90% ऑफ जनता क्या करेगी, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशनशिप हैं, जो भी 8-10 पॉइंट नोट्स में लिखे हों, सब लाइन से छाप देंगे कि हम लोग ये मिलिट्री एक्सेस कर रहे हैं और सप्लाई चेन रेजिलियंस बना रखा है, क्वाड के मेंबर हैं, ये सब चीज़ें लिखते रहेंगे, लेकिन वो इन दोनों में लिंक नहीं करेंगे। और आपने अगर लिंक कर दिया तो वो उसकी डिमांड थी क्वेश्चन की और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली मैंने बहुत अच्छे पॉइंट्स नहीं लिखे हैं, मैं देखूंगा, मैंने 4 ही 5 पॉइंट लिखे, उसमें मुझे इन्फॉर्मेशन का मेरे पे डेफिसिट था, लेकिन मैंने एटलीस्ट उसको दिखाया ऐसा
कि देखो मैं तुम्हारा डिमांड तुमने जो पूछा है मैं वही एड्रेस कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे जो इंडियन एक्सटर्नल रिलेशनशिप है और उसका कॉमन कंसर्न क्या है कि अगर हम लोग इंडो पैसिफिक में कोऑपरेट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम दोनों चाहते हैं फ्री एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, है ना। सिमिलरली कि हमें जे इनिशिएटिव है क्योंकि चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज हमें नहीं पसंद है दोनों को ही। तो कॉमन कंसर्न आप बता रहे हो। अब बस तुम्हारे इतना लिख देने से मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे तुम कुछ भी लिखो, ये सब ये इसके अलावा तुम बहुत ही एवरेज पॉइंट लिखो, इस पूरे में तुम बहुत एवरेज पॉइंट लिखो, तुम बिल्कुल वैल्यूएडिशन मत करो, फिर भी तुम्हें मार्क्स मिलेंगे क्योंकि तुमने उसकी डिमांड पकड़ ली और डिमांड पकड़ के दिखा भी दी, प्रेजेंटेशन फॉर्म में दिखा दी कि देखो तुमने जो पूछा मैंने वही बताया। ये कर पाने से ही तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। और हो सकता है टेस्ट सीरीज में ना हो इंप्रूव, लेकिन रियल एग्जाम में ज़रूर होंगे। क्योंकि टेस्ट सीरीज में मुझे ऐसे मैं लिखता था तो मेरे को बोलते थे ये क्या है, ये कॉमन कंसेप्ट, ये कहाँ से आ गया, यहीं पे लिखो ना, लाइन लिखो सीधा, ये क्या टेबल बना दी, कंपैरिजन चल रहा है क्या, ऐसे करके। तो उस पर नहीं जाना है, लेकिन आपको देखना है कि क्या जो क्वेश्चन है उसकी डिमांड मीट हुई कि नहीं। अब इसका आंसर भी ये मतलब वही 5 पॉइंट लिखे हैं सेम तरीके से। आपको बस मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि आप ये जो नई चीज़ें ऐसा कर सकते हैं। 2 चीज़ों में लिंकेज दिखाना है तो आप छोटा सा टेबल बना के कर सकते हो। बहुत एवरेज पॉइंट्स लिखो लेकिन दिखाओ ऐसे, इसमें भी मार्क्स मिल रहे हैं क्योंकि ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है ये। इसमें मैं आगे बढ़ता हूँ। ये इसका मैंने ये चैट जीपीटी से निकाला था। तो उसने भी, मैंने चैट जीपीटी को बिल्कुल नहीं बोला कि किस फॉर्मेट में बताओ या क्या, उसने मेरे को ऐसे ही बताया अपने आप। तो इवन उसको भी ये पता है कि अगर कॉमन कंसेप्ट पहले दिखाऊंगा फिर मैं बताऊंगा स्टेप्स क्या टेक किए हैं या हम लोग ने क्या रिलेशन हमारे हैं। ओके अब ये नेक्स्ट चीज़ है प्रेजेंटेशन की फॉर्म में कि आप प्रेजेंटेशन में क्या बेटर कर सकते हो। दिखाई दे रहा है आप लोग को? ओके तो प्रेजेंटेशन में क्या बेटर कर सकते हो, मेरा एक नया चीज़ थी जो बाकी लोग ने नहीं की है, तो आप लोग अपने में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। कोई भी चीज़ आप न्यूज़ की कोई चीज़ लिखते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा लिखते हैं, लेकिन हम लोग कभी ये यूँ मान लो कि आपको पेपर के अंदर ब्रैग करना है कि मैंने न्यूज़ से लिखा है, वहाँ पे एग्जामिनर के सामने ब्रैग कर रहे हो कि देखो मैंने न्यूज़ से उठा के लेके आया हूँ। उसके लिए मैं क्या करता था कि जानबूझ के ईयर लिख देता था। यहाँ पे दिख रहा है ना आप लोग को? तो ये देखो मैंने 2024 ईयर लिख दिया ऐसे करके। यहाँ पे लिखा है। सिमिलरली यहाँ पे कोई ये क्वेश्चन था कि मल्टीपोलर वर्ल्ड एनहेंसिंग, ये तो इसमें मैंने लिखा क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया। अब ये तो बात बहुत कॉमन है ना, क्रूड ऑयल हम लोग रशिया से मंगा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है ना ये वाला चीज़, क्रूड ऑयल हम लोग रशिया से मंगा रहे हैं, तो उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन मैंने यहाँ पे 2024 लिख दिया ना। अब वो जो पढ़ेगा वो ऐसे नहीं मेरे को 2024 देख के मार्क्स देगा, लेकिन उसको कुछ अलग दिख रहा है कॉपी में कि यार कुछ तो मतलब बहुत स्पेसिफिक कर रखा है। ऊपर से नज़र घुमाएगा क्या बड़ा स्पेसिफिक है यार, ये देख 2024 बड़ी लेटेस्ट चीज़ें इसने लिखी हुई हैं। तो ये चीज़ें आप अपनी आंसर में डालो कहीं से भी। ये मैंने किया एक यहाँ पे। अब जैसे हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि साइबर थ्रेट है हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं भी, न्यूज़ में भी आता रहता है। किसी दिन कोई एक छोटी मोटी कोई कोने में भी न्यूज़ होगी जिसमें कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हो गया होगा। एक बार एम्स पे हुआ था दिल्ली पे, कभी ATM बैंकिंग पे हो जाता है, कभी किसी पे। तो एक दिन न्यूज़ में आ रहा था कि CH बैंकिंग नेटवर्क को सर्विसेज है उस पर अटैक हो गया। तो मैंने सोचा ये पॉइंट कोई नहीं लिखेगा। ऐसा नहीं कि ये बहुत ही खतरनाक पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट कोई नहीं लिखेगा और मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि जैसे मैंने बहुत स्पेसिफिक चीज़ लिखी है। मैंने इसको 3 से 4 बार यूज़ किया था अपने टेस्ट में और असली एग्जाम में भी एक बार यूज़ किया कि बिल्कुल ऐसे कि 2024 पहले मैं लिखता था। पहले तो कि जो पढ़ रहा है वो समझ जाओ कि मैंने देखो 2024 का चीज़ न्यूज़ लिखी है बिल्कुल लेटेस्ट। और फिर मैं जो उसमें भी स्पेसिफिक चीज़ है उसको बॉक्स किया मैंने कि देखो मैंने CH बैंकिंग के बारे में लिखा है, जो कि एक नेटवर्क उसको साइबर अटैक हुआ था, जो कि 150 से 200 कोऑपरेटिव बैंक्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप ये चीज़ें करोगे तो आपका प्रेजेंटेशन बेटर होगा। और ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा होगा कि इतना सारा कंटेंट हो जाएगा, मैं याद कैसे करूँगा, फिर यार कैसे बिठाऊंगा, आंसर में कैसे याद आएगा। आप हमेशा साइबर अटैक के साथ इस चीज़ को हमेशा एक साथ याद करो ना। साइबर अटैक जहाँ पे भी लिखा है वहाँ पे ये चीज़ लिख दो और सोच लो कि मैं कोई और एग्जाम्पल लिखूंगा ही नहीं, यही एग्जाम्पल लिखूंगा, तब तो याद रह जाएगा ना। आप 50 एग्जाम्पल याद ही मत करो, आप एक याद करो जो कि बहुत स्पेसिफिक हो, वैसे करके। ओके अब जैसे ये था कि जब भी मुझे था कि वाटर इन्फॉर्मेशन शेयरिंग या वाटर डिस्प्यूट होता है ना स्टेट्स के बीच में, तब क्वेश्चन में बहुत सारे लोग लिखते हैं, कोई और कावेरी का लिख देते हैं, कभी किसी का लिख देते हैं। मैंने सोचा था कि थोड़ा मैं अलग लिखूंगा और रिसेंट का लिखूंगा। तो किसी दिन ऐसा न्यूज़ में आया था कि तेनूघाट रिवर झारखंड ने जो है उसने मतलब कि उसका पानी छोड़ दिया बिना बताए, तो वेस्ट बंगाल के कुछ एरियाज में फ्लड आ गया था, ऐसा न्यूज़ में था। तो मैंने उसको 1 लाइन में 2 लाइन में कैसे आ जाएगा उसको मैंने लिखा, 2024 लिखा। अब मैंने हमेशा इसी को लिखने वाला हूँ ज़िंदगी भर। कोई भी मुझे वाटर डिस्प्यूट की बात करता है अभी भी मुझे यही याद आता है कि तेनूघाट वाटर, जबकि ये कितनी छोटी सी, मतलब वैसे उन लोगों के लिए खैर बड़ी बात होगी फ्लड आ गया, लेकिन नेशनल लेवल पे देखा जाए इतनी कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है। इससे बड़े कंसर्न कावेरी वगैरह के और मुल्ला पेरियार डैम वगैरह उन सब के हैं। बट ये लिखने से आपको एज मिलेगा क्योंकि जो पढ़ रहा है उसको नई चीज़ देखने मिल गई और उसको बहुत स्पेसिफिक मिल गया, उसको बहुत रिसेंट मिल गया एक साथ। ये आसान है कर पाना, है ना।
अब ये माइक्रोसॉफ्ट का ब्लू स्क्रीन, ये वाला तो शायद सबने ही न्यूज़ में देखा होगा, देखा है था ना, देखो सब लोगों ने देखा है। तो बस इसको लिख लो, और कितना छोटा है माइक्रोसॉफ्ट ब्लू स्क्रीन इशू 2024, इससे ज़्यादा छोटा एग्जाम्पल कुछ हो नहीं सकता, लेकिन इतना स्पेसिफिक है कि वो मार्क्स आपको पकड़ा देगा। अभी तक कोई डाउट है क्या आप लोग को इसको लेके, या कैसे इकट्ठा करना है ये सब, या न्यूज़पेपर कितना डेप्थ में पढ़ना है, कुछ भी डाउट आए तो पूछ लेना। ओके, न्यूज़पेपर का क्या? ये सारे हमें मतलब एक जगह पहले से नोट करके रखने हैं, क्या आप- क्या कैसे नोट करके रखना है, हाँ। ये सारी चीज़ें। ये वाला क्वेश्चन अभी टैकल होने वाला है आगे की फ्लाइट में, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्वेश्चन आएगा कि अब ऐसे न्यूज़पेपर से हम कहाँ कहाँ तक निकालेंगे और कहाँ लिखेंगे, और लिखेंगे तो उसको फिर याद कैसे कर पाएंगे, है ना। तो उसको लेके अभी मैं इसके बाद एड्रेस करने वाला हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में है किसी में। ये बस सेम ही चीज़ मैंने दोबारा से लेके, अब ये नहीं था यूपीएससी NHRC आस्क्ड द लोकल अथॉरिटीज फॉर रिपोर्ट ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट किल्ड बाय इलेक्ट्रोक्यूशन। एक ही न्यूज़ में नहीं आया था लास्ट ईयर, ट्रेजिक इंसिडेंट था कि इलेक्ट्रोक्यूशन से एक लड़के की डेथ हो गई थी। अब उस पर NHRC ने अथॉरिटी से, लोकल अथॉरिटी से रिपोर्ट मांगी थी, ऐसे न्यूज़ में आया था। बहुत रूटीन प्रोसीजर हुआ NHRC के लिए तो, लेकिन मेरे लिए ये हो गया कि मैंने NHRC का 2024 का एक बढ़िया सा एग्जाम्पल निकाल लिया। NHRC के 2024 में खैर काफ़ी एग्जाम्पल्स थे, लेकिन मैंने एक निकाल लिया। अब मैंने NHRC पे क्वेश्चन आएगा ना, मैं इंट्रोडक्शन में ही लिख सकता हूँ इसको, या फिर मैं किसी एग्जाम्पल में, तो पहले अगर मैं लिखूंगा तो पहले ही पॉइंट पे लिख दूंगा, ताकि मैंने बोला नहीं कि प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि शुरुआत में ही लिख जाए कि आपको चीज़ें पता हैं, आप इसके बारे में वेल इन्फॉर्म्ड हो। तो वैसा अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि यहाँ पे मैंने थर्ड पॉइंट पे लिखा होगा। हाँ, 2024 में NHRC ने एक और चीज़ की थी कि अमेजन वगैरह, तो ये है कि आप 2024 ये ईयर वाली चीज़ नहीं की है मैंने, तो ये आप इंकॉर्पोरेट कर सकते हो। बाकी एग्जाम्पल्स एक एक निकाल लो, हर चीज़ का 2-2 निकाल लो, और उसको अपने नोट्स में जहाँ पे भी उसके मेन नोट्स हैं वहाँ पे ज़रूर से लिख दो। अभी कीवर्ड्स, अभी देखो मेरे एथिक्स का ये आई थिंक, हाँ, कीवर्ड्स प्रेजेंटेशन का नेक्स्ट सबसेट है कि कीवर्ड्स जितने ज़्यादा फेंक सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। मेरे तो, मैं कई बार ऐसा हो जाता है, मैंने पूरा पॉइंट लिख दिया, उसमें कीवर्ड आया ही नहीं, तो मैं उसमें फ्लोटिंग कीवर्ड डाल रखी। ये देखो, मतलब ये मैंने इन्वॉल्विंग सिविल सोसाइटीज़ एंड ग्राम सभा, अब मेरा पॉइंट खत्म हो गया, मुझे इसमें कीवर्ड डालना था कि पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, तो मैंने फिर अलग से पार्टिसिपेटरी लिख के बॉक्स कर दिया। बिल्कुल फ्लोटिंग कीवर्ड्स का कोई ना ऊपर से लिंक है ना नीचे से, मतलब बस ये है कि ये इस चीज़ के बारे में बताता है, लेकिन कोई सेंटेंस का पार्ट तो नहीं है ये। लेकिन फिर भी मेरे फ्लोटिंग कीवर्ड्स, आपको ये सोशल इन्फ्लुएंस दिख गया, ये देखो यहाँ पे टेकिंग द मैटर टू विलेज एजुकेटेड एल्डर्स एंड यूथ, कुछ होगा चीज़ें, तो मैंने कहा कि सोशल इन्फ्लुएंस का यूज़ करेंगे। अब ये इसका ये कोई सेंटेंस का पार्ट तो है नहीं है, लेकिन मुझे कीवर्ड घुसाना था इसमें कैसे भी, तो मैंने ये घुसाया। और ये कहाँ से आया, ये वही कि मैं एथिकल कीवर्ड्स की डिमेंशन में चीज़ों को सोच रहा हूँ, हर चीज़ को, कि कहीं पे मैं पूरे दिन भर में 10 बार पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस सोच चुका हूँ, सोशल इन्फ्लुएंस, ये सब देखो हवा में। ये वाला चलो सेंटेंस का पार्ट है कि अंगेज द वैल्यू ऑफ जेंडर जस्टिस, और जेंडर जस्टिस एक कीवर्ड है, तो मैंने इसको बॉक्स कर दिया। लेकिन जिस सेंटेंस में नहीं आ पा रहा है उसमें मैंने ऐसे करके लिख दिया, लेकिन हर जगह पे एक एक कीवर्ड ज़रूर लिखा है, और ये अक्रॉस पेपर है, GS 1 2 3 4 सभी में। मुझे लगता है इससे मार्क्स इंप्रूव हुए हैं, क्योंकि ये मैंने चीज़ लास्ट ईयर उतनी नहीं की थी। अब प्रेजेंटेशन में एक चीज़ और, जिससे आपने बोला एथिक्स में कैसे मार्क्स बढ़ा सकते हैं वगैरह, क्या एथिक्स में एक मैंने नई चीज़ की थी जो कि हेल्प की है। जब कोर्स ऑफ एक्शन एक पूछा था, केस स्टडी आप लोगों ने किसी ने लिखी है क्या? ओके, कोई केस स्टडी का बेसिक बता देता हूँ। कुछ एक केस लिखा होगा एक पेज का कि ऐसा ऐसा हो गया है, आप DM हो या SP हो, और ऐसे के बाद आप क्या एक्शन लोगे, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। फिर बाद में ये भी लिखा होता है कि जो भी आप बोल रहे हो उसके प्रोस कॉन्स क्या हैं। अगर 3 ऑप्शंस थे आपके पास, तो तीनों के प्रोस कॉन्स क्या हैं, तो आपको वो बताने होते हैं। अब इसमें एक मैंने इनोवेशन किया कि कोर्स ऑफ एक्शन जब मैं लिख ही रहा हूँ, अब कोर्स ऑफ एक्शन में आपका मतलब क्या हुआ कि मैं क्या करूँगा, क्या करोगे, उसमें कीवर्ड्स कहाँ से डालोगे, बड़ा मुश्किल है डालना। तो मैंने उसके आगे एक जस्टिफिकेशन का कॉलम बना दिया कि जो भी मैं कर रहा हूँ मैं उसको जस्टिफाई इसलिए कर रहा हूँ कि, और जस्टिफिकेशन में आपको ये कीवर्ड या कुछ एक ऐसा वर्ड डाल सकते हो जो एथिक्स से रिलेटेड होगा, कि यार मैं यहाँ पे फर्स्ट इन्वॉल्व द विलेज एल्डर्स एंड एजुकेटेड यूथ इन द, जो भी मैंने कोर्स ऑफ एक्शन का पहला था, तो मैंने इसमें लिख दिया कि देखो डेलिब्रेशन पे लेके आओ बात को, कि डिस्कस करो, डेलिब्रेट करो चीज़ों को। फिर यहाँ पे एक रिलीजियस डिबेट इन अ हेल्दी मैनर मस्ट बी कंडक्टेड। ये मेरा कोर्स ऑफ एक्शन बहुत बेसिक है, लेकिन ये चीज़ बहुत न्यू है, ये आपको नॉर्मली नहीं दिखाई देगी, और मुझे लगता है हेल्प की होगी, क्योंकि जो जिन लोग को मैंने कॉपी पढ़ाई वो सब लोग कहते रहे ये काफ़ी अच्छा तरीका है। तो आप लोग इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, एथिक्स में मार्क्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ओके, एथिक्स में आपको शायद से इशू था ना, आपने बोला था, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। एक तो एथिक्स में आप जस्टिफिकेशन जहाँ पे दे सकते हो वहाँ पे दो, और कीवर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा डालो। 2 चीज़ें करोगे तो आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे। और अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल दोज थिंग्स की आप प्रैक्टिस तो करनी है, सिलेबस तो कवर करना है, एग्जाम्पल्स भी याद करने हैं, ये सब तो करना ही है उसके अलावा। ओके, अब ये है कि मैं कीवर्ड्स को लेके ऐसा था कि
यहाँ पे अब हाँ, अब जैसे ये होता है कि ऑप्शंस भी पूछे जाते हैं, और ऑप्शंस में आप पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा लिखोगे, और फिर आपको प्रोस कॉन्स बताने होते हैं कि इसके पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव्स क्या है। ओके, हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव में भी मैं यहाँ पे कीवर्ड्स डालता था। आप देख रहे हो हर पॉइंट पे कीवर्ड है एक। और बिग सिटी पोस्टिंग्स पर पॉजिटिव ये है कि अगर मैंने कुछ ऐसा होगा कि पॉलिटिशियन के खिलाफ एक्शन नहीं लोगे तो क्या पॉजिटिव्स हैं, तो पॉजिटिव मैंने पहले लिखा कि मुझे बिग सिटी पोस्टिंग मिल जाएंगी, होगा कुछ कंटेक्स्ट होगा केस स्टडी में। मैंने फिर यहाँ पे लिख दिया प्रोफेशनल ग्रोथ। सेंटेंस का पार्ट नहीं है, लेकिन जो भी पढ़ रहा है मेरी कॉपी, उसके लिए कितना काम आसान हो गया। वो कहेगा पॉजिटिव, प्रोफेशनल ग्रोथ, केयर एथिक्स और सेफ्टी कुछ होगा, उसको कंटेक्स्ट पता है, केस स्टडी पढ़ रखी है उसने। नेगेटिव, डेमोक्रेसी, करप्शन, स्लिपरी स्लोप भी दिख गया उसको, अंडरलाइंड है, तो उसने कहा ठीक है, इसने सब कुछ कवर कर दिया। इतनी जल्दी चेक होने की वजह से ही वो ज़्यादा मार्क्स दे देगा कि यार बढ़िया कॉपी है यार, हाल चेक हो गई 5 मिनट में, तो मैंने कितने क्वेश्चन कर डाले। तो आप उसको खुश कर रहे हो, आप उसको, मैंने देखा कई लोग आंसर ऐसे लिखते हैं जैसे वो एहसान कर रहे हैं एवेल्यूएटर पे कि खुद पढ़ लेना जाके। मैंने एक मतलब कई लोग हैं जिनको मैं ये एक मेरा फ्रेंड है, उसका खैर अभी प्रीलिम्स निकला नहीं है, लेकिन वो मतलब मेंस आंसर राइटिंग करता है, तो उसको मैंने बोला कि अंडरलाइन कर दिया करो या बॉक्स कर दिया करो चीज़ों को, ठीक है। बॉक्स, मैंने बोला कि तुम जो भी लिख रहे हो, जैसे ये एक लाइन लिखी है, ये लिखी है, ये लिखी है, तो मैंने कहा कहीं कहीं पे बॉक्स कर दिया करो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, और कहीं कहीं पे अंडरलाइन कर दिया करो। अब वो पता है क्या कर रहा है कि अच्छा ये काम की चीज़ थी, बॉक्स कर दिया, यहाँ पे भी एक बॉक्स कर दिया, एक ऐसे बॉक्स कर दिया, एक यहाँ अंडरलाइन कर दिया, उसने और ख़राब कर दी कॉपी, और उसको लग रहा है अब इवैल्यूएटर की जिम्मेदारी है वो मेरा बॉक्स पढ़े जाके। आप उसको परोस के दो ना, उसकी जिम्मेदारी नहीं, वो कहेगा बेकार कॉपी है ये, वो 0 दे के पढ़ जाएगा, उसको किसी को अकाउंटेबिलिटी उसकी सेट नहीं है। देखा जाए तो आपको अपनी कॉपी देखने का मौका नहीं मिलेगा, तो उसने 0 दे दिया तो आपके अच्छे आंसर पे भी, तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। आपको उसको खुश करके रखना है, आप एहसान नहीं कर रहे हो कॉपी लिख के, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो। अब जैसे इस केवल मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, अगर जैसे ये वाला अगर जो कॉपी थी, ये वाला जो आंसर है, इसमें मैंने बॉक्स किया है, लेकिन बॉक्स करते वक्त भी मैंने देखो कुछ चीज़ों का ध्यान रखा है कि बॉक्स बहुत ही नीट हो। जैसे इसमें केवल इतना ही काम का था, तो मैंने पूरा बॉक्स नहीं बड़ा सा बना दिया, इतना सा ही बनाया ऐसे घुमा के। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें जैसे आपकी कॉपी साफ दिखाई दे रही है। सिमिलरली आप यहाँ पे ये कर रहे हो, और हो सकता है कोई इंसान इस चीज़ को यहाँ से लिंक कर दे, पढ़ने वाला कहेगा सिटीजन सेंट्रिक प्रेसिडेंट जस्टिफिकेशन क्या है ये, तो मैंने उसको एरो करके दिखा दिया, नहीं ये इससे रिलेटेड है। इतना उसके लिए आसान कर दो उसकी आंखों के लिए कि वो बस फ्लो में पढ़ते चला जाए। ये चीज़ मुझे कॉम्प्लीमेंट बहुत लोगों से मिला है कि आप तुम्हारी कॉपी पढ़ने में बहुत आसान रहती है। हो सकता है यही वजह हो सकता है मेरे कंटेंट काम ना आता, बस कॉपी आसान है इसीलिए मार्क्स मिल गए, ये भी हो सकता है। तो आप इस पर वर्क करो। मैं इसमें अगर बॉक्स और अंडरलाइन करूँ, ऐसे बॉक्स करने लगूँ, ठीक है, अंडरलाइन मैं इसको कर रहा हूँ और मैं यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ, मान लो इतना नीचे, वो उससे ज़्यादा तो इसके क्लोज है, तो ये कोई साफ थोड़ी ना दिखाई देगा। फिर फाइनली वो बहुत ही अजीब कॉपी हो जाएगी। मैंने इसको बॉक्स कर दिया, ये भी अंडरलाइन कर दिया, यहाँ पे मैं पूरा पॉइंट ही बॉक्स कर दिया। और बॉक्स भी ऐसे लोग करते हैं, ये बिल्कुल पतला है, कहीं मोटा है, कुछ भी। थोड़ा सा ध्यान दो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ ये करने से मार्क्स मिलेंगे, लेकिन ये सब करोगे तो मार्क्स आपको ज़्यादा आसानी से वो डिलीवर कर पाएगा, वरना कॉपी नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इसमें आप अपना इनोवेशन ला सकते हो, जो भी मन करे। ऐसे ये तो बॉक्स और अंडरलाइन जस्टिफिकेशन मैंने किया, आप लोग को जो मन करे आप वो इनोवेशन लेके आओ। अब प्रेजेंटेशन में एक है कि मैप्स वगैरह आप लोग बहुत जगह पे यूज़ कर सकते हो। रीजनलिज्म पे क्वेश्चन आएगा, या एक क्वेश्चन 2023 में आया था कि इंटरनल सिक्योरिटी हॉटस्पॉट क्या है इंडिया में, ऐसे करके। उसमें ज़्यादातर लोग ने अपना लिखा था, लेकिन एक है जिसको मैं जानता हूँ, उसका सिलेक्शन भी हुआ था, उसने इस तरह से लिखा था। वहीं से मुझे आया कि मैप्स वगैरह को ज़्यादा यूज़ करना है। उसने वो आंसर ही ऐसे लिखा था कि उसने यहाँ पे मैप बनाया इंडिया का, ठीक है, भी है इंडिया का मैप बना के उसने जो हॉटस्पॉट्स हैं, मतलब मैप उसने छोटा सा बनाया। ये अगर पेज है पूरा, ये अगर पेज है, तो उसने मैप यहाँ पे बहुत छोटा सा बनाया इंडिया का, ओके। और उसने यहाँ पे मार्क करके इधर एक पूरा इंटरनल हॉटस्पॉट बता दिया, दूसरा हॉटस्पॉट यहाँ पे बता दिया ऐसे एरो करके, तीसरा हॉटस्पॉट एरो करके यहाँ बता दिया, चौथा यहाँ बता दिया। अब ये पॉइंट इतना अच्छा दिखने में लग रहा है, ये आप पॉइंट वाइज जैसे नॉर्मली लिखते हैं उतना अच्छा नहीं लगता कि यार आधा पेज के मैंने आधा पेज के। उसने भले ही पॉइंट्स कम लिखे होंगे, दिखने में इतना आसान है ना, उसने पूरे इंडिया का दिखा दिया कहाँ पे क्या इशू है। और फिर इसके अलावा नेक्स्ट पेज पे उसने क्या किया, नेक्स्ट पेज पे इसके अलावा उसने लिखा कौन से इंटरनल सिक्योरिटी इशूज़ हैं जो अक्रॉस इंडिया हैं, ये हेडिंग थी उसकी। और यहाँ पे उसने अक्रॉस इंडिया वाली लिखी, जैसे साइबर सिक्योरिटी थ्रेट हो गया, है ना, कम्युनलिज्म वगैरह हो गया, ये तो अक्रॉस इंडिया है इशू। तो
तो वो वाले इसने यहाँ लिख दिए, इंडिया वाले मैप वाले जो स्पेसिफिक थे नॉर्थ ईस्ट के और पंजाब के वगैरह के, वो वहाँ लिख दिए। कितना बढ़िया प्रेजेंटेशन है। तो इस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। अब ये वाला मैप आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ये चीज़ रीजनलिज्म को लेकर है। मैंने रीजनलिज्म यहाँ पे जो भी मुझे जितना याद आया मैंने एक मैप पे बना के सब लिख दिया। अब इसमें से मुझे अगर यूँ मान लो आधे से भी कम याद आ जाए, लाइक मैंने यहाँ पे 15 लिखे होंगे, तो मुझे अगर इसमें से 5 भी याद आ जाए तो भी मेरा सफल है ये मैप, इतनी मेरी मेहनत सफल है। क्योंकि 5 याद आ गए, मैं एग्जाम में तो उतना ही लिख पाओगे ना, और जगह भी कम होती है। तो और कितना अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको ये मैप याद है, इसलिए वहाँ पे आपके दिमाग से मैप ही सबसे पहले निकलेगा, ना कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं किस फॉर्मेट में लिखूँ वहाँ से। तो मैप्स का खूब यूज़ करो। इस बार तो पेपर भी ऐसा था कि इतनी जगह पे यूज़ हो रहा था, शायद रीजनलिज्म या फिर रीजनल डिस्पैरिटी पे एक क्वेश्चन था, उस पर मैंने मैप को यूज़ किया। मैं यहाँ पे बनाया भी। मैप के अलावा ये डायग्राम्स भी, एक अर्बन फ्लडिंग पे क्वेश्चन था। अब ये डायग्राम मैंने खुद सोचा था जब मैं फ्लडिंग के बारे में पढ़ रहा था। मैं सोचा कुछ अगर बनाना होगा तो क्या बनाऊंगा, बहुत आसान सा। तो बस ये है कि फ्लड, ये एक पेड़ है, कहीं पे फ्लड प्लेन था, यहाँ पे इंक्रोचमेंट हो गया कि लोगों ने पेड़ काट के घर बना दिए, पानी वहीं पे ही है। बाद में पानी का लेवल ऊपर हो गया किसी दिन, तो सब घर डूब गए, बस खत्म हो गया, यही है फ्लड। अब ये बना दोगे, ऐसा नहीं कि इससे कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये देख के उसको समझ में आ जाएगा, इसको समझ में आता है इंक्रोचमेंट वगैरह, उसको दिखने में अच्छा लग रहा है, दिन भर कॉपी नॉर्मल पढ़ रहा है, एक में इतनी चीज़ ऐसी दिख गई, तो वो मार्क्स देगा आपको एक्स्ट्रा। ये क्वेश्चन इस बार आया था बॉर्डर्स को लेके। अगर आपको पेपर देखा होगा 2024 का इंटरनल सिक्योरिटी में, कि बॉर्डर पे क्या क्या इशूज़ हैं, तो मैंने एक ही मैप में ज़्यादातर इशूज़ लिख दिए थे कि हमारे बॉर्डर्स पे क्या क्या इशूज़ हैं। पाकिस्तान वाले पे इन्फिल्ट्रेशन ऑफ टेररिस्ट, ड्रग्स और आर्म्स। फिर नेपाल वाले पे ओपन बॉर्डर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ओपन बॉर्डर है ना नेपाल के साथ हमारा। फिर यहाँ पे क्या इशू है, यहाँ पे क्या, चाइना का नहीं लिखा क्योंकि चाइना का फिर पूरा अलग हो जाता है कि यहाँ का अलग इशू अलग बताओ, यहाँ का इशू। ओके, तो ये सब आप यूज़ करना। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये मिलेंगे कहाँ पे, तो कोई भी कोचिंग का बेसिक सोर्स या किसी भी टॉपर के नोट्स उठाना, उसमें ज़रूर होगा ये सब। ये चीज़ कॉमन प्रैक्टिस है सब में। ओके, यहाँ से मार्क्स पढ़ेंगे, आप कोई भी यहाँ से लिखते हो, सोचो इसमें कि मैप लिख सकते हैं कि नहीं, तब आपके मार्क्स पढ़ेंगे। मैप या डायग्राम कुछ भी, बेसिक से बेसिक भी। आपको साइक्लोन पे क्वेश्चन है तो साइक्लोन बना दो ना छोटा सा कोने में। सुनामी पर है तो इसे वेव बना दो कि वो ज़मीन पे आए जा रही है, कुछ भी बना दो, आपको बस थोड़ा बेटर दिखाना है। What do AIR2 Harshita Goyal and AIR3 Dongre Arshit Parag have in common? Apart from securing top ranks in UPSC CSC 2024, they both began their journey with the General Studies Foundation course at Vision IAS. They didn't wait to feel ready. They built readiness step by step with structure, strategy and support. If you are feeling stuck, overwhelmed or unsure where to begin, that's not a flaw. It's a signal. A signal that what you need isn't more hours, it's a better direction. And that's exactly what the Vision IAS GS Foundation course is built for. Here's how we guide you from day one. Structured step-by-step learning, prelims, mains, CSAT and essay, all taught in a way that's easy to absorb and hard to forget. No fluff current affairs. PT 365 and Mains 365 filter out the noise, so you focus only on what matters. Mentorship that adapts to you. Real one-on-one support to fix your weak spots, refine your strengths and build your confidence. Test plus feedback loop. Not just marks, but meaningful feedback that helps you grow with each attempt. So don't just prepare harder, prepare smarter. With the same foundation that built toppers. फिर अब वो प्रेजेंटेशन खत्म हो गया, अब आता है कंटेंट में तो आपको बेसाब मेहनत करनी होगी। और जैसा आपने पूछा कि ये न्यूज़पेपर से कितना निकालना है, क्या करना है, ये मैं था कि भाई कंटेंट हो तो सब कुछ हो सकता है। और ये आपने कॉपी अगर देखी अनिमेश प्रधान की, देखी है किसी ने AIR2, उसकी कॉपी देख के मुझे ऐसा लगा कि यार ये बहुत नेक्स्ट लेवल पे खेला। वो एक मोटिवेशन था मेरे लिए कि मुझे कंटेंट इंप्रूव करना है, कुछ भी हो जाए। 23 में उसका रैंक 2 आया था, मेरा 156 था, तो आई वांटेड टू इम्प्रूव माई रैंक। तो मैंने उसको बहुत अच्छे से फॉलो किया, उसकी कॉपीज़ को भी थोड़ी बहुत बातचीत करके। तो उसने भी कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा उसने किया हुआ था, तो मैंने यही सोचा कि कंटेंट इंप्रूव करना है। तो पहला पॉइंट क्या था, प्रेजेंटेशन इंप्रूव करना है, क्योंकि वो आसान है करना, उसमें कुछ नहीं, बॉक्स डब्बा ये सब जस्टिफिकेशन ये सब करना है। ये काम थोड़ा कठिन है, लेकिन ये भी करना पड़ेगा आपको, कंटेंट इंप्रूवमेंट। कंटेंट के लिए आप कहाँ पे जाएँ, ये मैंने कुछ और एग्जाम्पल सीखे, ये मैं PDF शेयर करवा दूंगा कि मैंने विमेन पे नोट्स बनाए थे। तो सोचो कितने डिटेल्ड नोट्स हैं, ये मेरे इस बार के नोट्स हैं कि इश्यूज़ लिख रहा हूँ अगर विमेन के,
तो यहाँ पे एजुकेशन में क्या क्या इशूज़ हैं, डेटा वगैरह के साथ सब कुछ है, वायलेंस को लेके क्या इशूज़ हैं, हेल्थ केयर को लेके क्या इशूज़ हैं, इतने स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं ये पूरे जो नोट्स हैं इसमें विमेन पे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत स्पेसिफिसिटी के साथ कवर कर सकते हो। और फिर सिमिलरली WF मतलब वे फॉरवर्ड देख रहे हो कितने सारे हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा ये तो भाई ये तो याद ही नहीं होगा, लेकिन मैंने एक दिन में थोड़ी ना बनाया है, मैंने तो कभी पहले एक ही लिखा होगा, फिर किसी दिन मुझे कुछ और मिला होगा वो लिखा होगा, किसी की कॉपी में कुछ दिख गया, कभी न्यूज़ में दिख गया, तो वो सब डाल के ये सब इतना सारा हुआ है। आज से काम करोगे तब जाके मेंस तक आपका बहुत बेटर हो पाएगा, है ना। मेंस के टाइम पे थोड़ा सा इश्यू हो सकता है, इसलिए अभी से ये सब शुरू करो। हालांकि कितना स्पेसिफिक लिखता था तो ये सिटिंग्स नंबर ऑफ सिटिंग कम हो गई हैं। अब इसमें देखो इसमें पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग है जो मैंने अभी तक बताया। प्रेजेंटेशन देखोगे तो वो बने हुए हैं, ये चीज़ इन सब के मार्क्स मिलेंगे आपको, बार चार्ट बने हैं, अंडरलाइन अच्छे से किया हुआ है, बॉक्स बनाए हुए हैं, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें। अब ये मैंने ऐसे करके लिखा है, ये कैसे भी लिख सकते थे लेकिन ऐसे लिखा है थोड़ा दूर से साफ दिखाई दे रहा है। सिमिलरली यहाँ पे अटेंडेंस को केवल बॉक्स किया है ताकि वो बस देखे अटेंडेंस और 80 to 89 तो मतलब 79 वो कहेगा ठीक है आगे बढ़ जाएगा, पूरा पॉइंट नहीं पड़ेगा, उसका काम आसान कर दिया। तो ये हेल्प करता है। GS2 की एक कॉपी है, इसमें वे फॉरवर्ड में देखो रिमीडियल मेजर्स में कितने सारे मैंने स्पेसिफिक चीज़ें लिखी हैं। मैं यही कॉपी जब मैं अगर 2023 में लिख रहा होता तो मैं बस ये लिखता कि पार्लियामेंट, क्वेश्चन ये था कि पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी कम हो गई है और कैसे ठीक की जाए। तो ये हैं रीजंस कैसे कम हुई है और ये हैं वे फॉरवर्ड। अगर मैं 2023 वाले कंटेंट से लिख रहा होता तो मैं बस ये लिखता कि पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एथिकल चीज़ें, इथोस डेवलप करो पार्लियामेंटेरियंस में, है ना, और सिविल सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट ले आओ ताकि वो ज़्यादा वॉच रखें, और जो वेस्ट होता है टाइम उसको कम करो। कैसे कम करो वो नहीं, बस कम करो, बड़ी ऊपर की बातें करके निकल लेता, इसलिए वहाँ उसमें मार्क्स थोड़े कम भी मिले हैं GS में मुझे। यहाँ पर मैं स्पेसिफिक लिख रहा हूँ कि NCRWC ने ऐसा बोला करने को कि इतने इनके दिन फिक्स कर दो। फिर NCRWC ने एक और चीज़ बोली कि मैंडेटरी स्क्रूटनी बाय पार्लियामेंट्री कमिटीज़, तो ये भी करो साथ में। इतना हर चीज़ में दिनेश गोस्वामी कमेटी, इसमें कोई कमेटी नहीं लिखी है लेकिन इसमें गीता मुखर्जी कमेटी। इसमें फिर UK मॉडल लिखा है मैंने। UK में क्या होता है कि कैग वुड बी मेड परमानेंट मेंबर ऑफ PAC, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये UK में होता है। तो मैंने डाल दिया कि अच्छा UK में होता है तो अपने यहाँ भी लेके आ जाओ। काम करेगा नहीं करेगा क्या, लेकिन उसने ये पढ़ लिया ना UK मॉडल कैग वगैरह, तो वो मार्क्स दे देगा कि भाई कितना स्पेसिफिक लिखा है, बगल वाले से मुझे अच्छा लिखना है बस। ओके, ये बस मैं दिखाने के लिए कि आप नोट्स कैसे बनाओ, इतना डिटेल में बनाओ ताकि आपका उसमें ही, अब कल को मुझे एक और चीज़ मिल जाएगी, मुझे सिविल सोसाइटी में कोई नया चीज़ मिला तो मैं उसको यहाँ पे एरो करके लिखूंगा और यहाँ पे कुछ और भी लिख दूंगा, यहीं ऐड हो गया। जो आपने पूछा कि मैं न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ रही हूँ तो फिर मैं कहाँ कैसे डालूंगी, तो ऐसे डालोगे आप, नोट्स बना के रखो पहले बेसिक और उसमें ही ऐड करते रहो, इतना सारा चीज़ हो जाएगा कि उसमें से आपको 50% भी याद रहा तो भी अच्छा आंसर लिख दोगे। ओके, लेकिन लिखो फिर भी सब, क्योंकि कौन सा याद रह जाए पता नहीं, कोई चीज़ आपको क्लिक कर जाती है बहुत लंबे टाइम तक याद रहती है, तो जो भी आते जा रहा है लिखते जाओ, लेकिन याद फिर फाइनली लिमिटेड करो और पेपर में उसको रिप्रोड्यूस करके आ पाओ। ओके, ये मेरे मतलब ये बस इस सब में देखोगे तो सिविल सोसाइटी के एग्जाम पे नाम है इतने सारे, कम से कम यहाँ पे तो 50 नाम लिखे होंगे अगर गिनोगे, और फिर ये अलग से कुछ और लिखे हैं, फिर यहाँ पे और लिखे हुए हैं नाम, है ना। तो ये है कि कहीं ना कहीं पे काम आ जाएंगे नाम, ये दिमाग में रहेगा। तो अब ये कि कहाँ से कंटेंट बनाना है, एक दिन में नहीं होगा ये काम। ओके, ये काम पहले आप सिलेबस के जो पॉइंटर्स हैं, सबसे पहले आप बेस तैयार करोगे, जो आपको कोचिंग में भी और वैसे भी आप ढूंढ के खुद से कर सकते हो। सिलेबस का जो कवरेज है, PYQ के नोट्स हैं, PYQ में अगर मान लो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पे क्वेश्चन आया हुआ है तो उसका आप ChatGPT या गूगल करके उस पर बेसिक नोट्स बना लो। उस पहली बार में मत ढूंढो कि मैं इसका ऐसा लिख दूँ कि जो ये कॉपी दिखाई थी ऐसी वाले हो जाए, पहले दिन मत ढूंढो ये। ओके, पहले दिन आप बेसिक लिख दो, बस इसमें इतना स्पेस हो कि आप और चीज़ें ऐड कर सकते हो, इतना कंजेस्टेड ना हो। फिर जब ये सब कुछ कवर हो जाएगा उसके बाद ही आप अगले स्टेप पे जा पाओगे। इसके बाद अगला स्टेप क्या है, फिर आप वैल्यू एडिशन करो। उसमें आपने अगर ये लिखा है कि पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी कम है, ये आपने नोट्स में लिखा हुआ है, तो आप इसको कहीं तो प्रूफ कुछ तो आप दोगे ना कि कम है, उसके लिए आपको वैल्यू एडिशन टॉपर्स नोट्स में मिल जाएगा, या मेंस 365 में मिल जाएगा, या किसी की टेस्ट की आंसर अपनी दोस्त का ही पढ़ रहे हो उसमें मिल जाएगा। वहाँ से उठा के चीज़ें लिखो कि अच्छा उसमें अगर लिखा हुआ है कि इस बार इतना % प्रोडक्टिविटी थी, 1% हर सेशन के बाद आता है, तो वो तुम लिख सकते हो और ब्रैकेट में लिख दो 2025, क्योंकि तुम 2025 हमेशा 2025 तुम्हें सोचना ही पड़ेगा जब तुम लिख रहे हो, तो 2025 ब्रैकेट में लिख दो कि अभी लिख रहा हूँ, मतलब अभी की है, तो वो करोगे। ये सेकंड स्टेप है। ज़्यादातर लोग इतने पर ही रहते हैं, उनके सिलेक्शन भी होते हैं और उनके रैंक भी बहुत अच्छी आती है। मैंने इसके अलावा भी एक स्टेप आगे गया
और न्यूज़पेपर से तो लोग उठाते हैं, लेकिन मैंने चैट जीपीटी को बहुत ज़्यादा यूज़ किया कि मैं अब चैट जीपीटी में अच्छी बात यह है कि अब मैं बैठ के निकलवा सकता हूँ कोई चीज़, मुझे वेट नहीं करना कि वो न्यूज़ में आएगा या मुझे कॉपी में मिल जाएगी। मैं अगर ये लिखना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो दुनिया के अच्छे अच्छे मॉडल्स क्या हैं, जैसे यूके मॉडल एक मैंने चीज़ दिखाई, इसके अलावा और भी तो होते होंगे लेकिन मुझे नहीं पता। मैं चैट जीपीटी को यही पूछूंगा कि टेल मी द बेस्ट मॉडल्स अराउंड द वर्ल्ड इन व्हेन इट कम्स टू पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड हाउ कैन इंडिया अडॉप्ट इट। तो 8-10 बताएगा वो, उनमें से जो 2-3 मुझे याद रह जाएंगे मैं वो लिख लूँगा, और उनका बहुत फैंसी नाम होगा, फैंसी नाम भाड़ में गया उसका, बस तुम वो उठा लो कौन से कंट्री का है, और कंट्री और मॉडल। ओके, वो अगर मान लो वो स्वीडन का है तो वह स्वीडन मॉडल, वो अगर वो उसका कुछ भी नाम हो, यूएसए का है तो यूएसए मॉडल। याद रखना आसान हो गया कि नहीं, अपना काम भी आसान हो गया और स्पेसिफिक भी हो गया, बाकी उनसे अच्छी कॉपी हो गई। ओके, ये चीज़ कर सकते हो। पॉडकास्ट में बहुत देखता था, मुझे बहुत इंटरेस्ट है कि कुछ फील्ड्स में, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं इतने पॉडकास्ट देखता था, जितने क्वेश्चंस आए थे ना उन सब पे मेरे इतने स्पेसिफिक नोट्स तैयार थे। वो ड्रग्स को लेके जो था, बॉर्डर को लेके था, सोशल मीडिया को लेके था। तो पॉडकास्ट अच्छे वाले देखो, है ना, ये एक्टर एक्ट्रेसेस वाले नहीं, या फिर म्यूजिशियन और ये जो मतलब, क्योंकि उसमें भी आपको उनका लाइफ एक्सपीरियंस मिल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन अभी आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो एटलीस्ट ये हो कि जानने को भी मिला, एंटरटेनमेंट भी हो गया। आप किसी आर्मी जनरल का देख सकते हो, वो कितनी चीज़ें आपको बता देगा कि बॉर्डर एरियाज़ पे क्या होता है ना। फिर आप किसी आईपीएस का या आईएएस का देख सकते हो, आईएएस आपको बताएगा कि क्या क्या लिमिटेशन आती है, क्या क्या इशूज़ आते हैं, हो सकता है आपको एथिक्स में काम आ जाए, और आपको भी अच्छा लगेगा देख के। आपको अच्छा मोटिवेशन, आपको पॉजिटिव मोटिवेशन आएगा कि यार इसने, वो अगर बोल रहा है कि मैंने अपने एरिया में स्कूलिंग अच्छी कर दी और हॉस्पिटल अच्छे कर दिए, इस वजह से वहाँ पे क्राइम कम हो गया 10 साल बाद, आपको कितना अच्छा लगेगा कि यार मेरे को भी यही काम करना है। अच्छे से पढ़ोगे, है ना। और डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह, बेस्ट प्रैक्टिसेस तो मैं इतना चैट जीपीटी को मैंने पूछी हैं। चैट जीपीटी पता नहीं, अब तो मुझे लगता था वो झूठ मूठ के बताने लग गया होगा मुझे कि यार इतनी इतनी किसको चाहिए होती हैं। हर चीज़ में मैं बेस्ट प्रैक्टिस ढूंढ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सिविल सोसाइटी कैसे बेहतर कर सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस बताओ, और फिर मैं उसको वे फॉरवर्ड में यूज़ करता था। वे फॉरवर्ड में यही तो है। अब एक मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, जो पिछला क्वेश्चन था उसी पे बिल्डअप करते हैं कि पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। कौन कौन आंसर देना चाहेगा? क्या कोई एक पॉइंट बताइए। We should provide education to Okay. rural areas. ओके, और कोई? हाँ, तो जॉब क्रिएशन, लेकिन कैसे होगी? मैं वही देखो, अब ये वाली चीज़ें मुझे एड्रेस करनी थी। जैसे तुमने बोला जॉब क्रिएशन, तुम सोचो तुम अगर आईएएस हो और तुमसे पूछा गया कि तुम्हारे एरिया में पॉवर्टी कम करनी, तुम कह रहे हो ठीक है जॉब क्रिएट करते हैं कल से। जॉब क्रिएट करना कोई काम नहीं है, जॉब क्रिएशन एक आउटकम है तुम्हारे किसी कामों का। तुम अगर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू करते हो तो वहाँ पे अपने आप जॉब क्रिएट होंगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में लेबर लगेगा, इंजीनियर लगेगा। फिर जब वो रोड बन जाएगी मान लो कोई, तो वहाँ पे दुकानें आ जाएंगी, शोरूम आ जाएंगे, तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तुमने जो बोला वो आउटकम है, उस आउटकम से पॉवर्टी एलिमिनेट हो पाएगी, लेकिन वो कोई प्रोसेस नहीं है जॉब क्रिएशन। मैं ये चीज़ मैंने गलती की थी 2023 में, और पहले भी मैंने जब आंसर लिखे हैं कि मैं बहुत ही सुपरफिशियल चीज़ें लिख रहा था कि यार ये कर देंगे, जैसे आपने बोला, फिर भी वो बेटर आंसर था। और कोई सोच सकता है तो बताओ। हाँ, वही सोशल इक्वालिटी भी कैसे, वो एक आउटकम है ना, कुछ करोगे तो सोशल इक्वालिटी आएगी लोगों में। बैठे बैठे मैंने आज साइन कर दिया, आज कल से सोशल इक्वालिटी रहेगी तो नहीं होगी। मनरेगा ये अच्छा पॉइंट है, क्योंकि वो एक प्रोसेस है। तो मनरेगा में भी कुछ एक चीज़ बोलो ना कि क्या बेटर करोगे, तो और अच्छा आंसर बनेगा। कि मनरेगा में हो सकता है कि जियो टैगिंग ऑफ एसेट्स को मैं और बेहतर कर दूंगा, है ना। ये फिर मैं सिविल सोसाइटी को बोलूँगा कि मनरेगा पे वॉच रखो, काम सही से हो रहा है कि नहीं, लोगों को जॉब मिल रही है कि नहीं, फेक बेनिफिशरी तो नहीं है। अब ये हुआ कि तुमने लोगों को जॉब भी दिला दी, वहाँ पे कुछ एसेट भी डेवलप हो जाएंगे और पॉवर्टी एलिमिनेशन भी होगा। वे फॉरवर्ड में जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्या नहीं लिखना है और क्या लिखना है, समझ में आ रहा है। जो सुपरफिशियल बातें हैं वो मत लिखो, मार्क्स कम मिलेंगे। और जो तुम स्पेसिफिक लिखोगे कि वो आउटकम नहीं, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ कि बैठे बैठे क्या तुम क्या करो जिससे कि बेटर हो। और बैठे बैठे हमें बहुत सारी चीज़ें कम पता होती हैं कि यार कैसे सोचेंगे, क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो कर सकते होते तो फिर हो नहीं गया होता। एक ये भी दिमाग में आता है। तो इससे अच्छा है तुम दुनिया के अच्छे अच्छे मॉडल उठा लो ना। चाइना में कुछ तो किया होगा जिससे पॉवर्टी एलिमिनेट हुई, या कोई और देश जाओ जो पहले गरीब था अभी ठीक है, तो उन, या फिर अपने ही देश में बहुत सारे एरियाज़ हैं जो कि अभी डेवलप कर गए हैं, लेकिन काफ़ी सारे में अभी भी पॉवर्टी हाई है। तो जहाँ डेवलप करके वहाँ क्या ऐसा हुआ, वहाँ का उठा के ले आओ। और ये खुद नहीं करना, चैट जीपीटी को पूछो कि व्हाट वाज द रीज़न वाई गुजरात हैव हायर इंडस्ट्रियलाइजेशन, या फिर महाराष्ट्र हैज़ हायर इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना, तमिलनाडु में भी है, लेकिन क्यों ऐसा है कि बिहार में नहीं है। तो पूछो उसको, तुम्हें चीज़ें मिलेंगी। तो इसलिए कल को क्वेश्चन आ गया कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाना है, तो तुम वो चीज़ें लिख दोगे जहाँ पे अच्छा अच्छा हुआ है, कि यहाँ पे क्या हुआ था ऐसा, तो स्पेसिफिक। और वे फॉरवर्ड के मतलब वे फॉरवर्ड अच्छा लिख दोगे तो अच्छी बात है कि वे फॉरवर्ड सबसे एंड में लिखते हो आप।
एंड में लिखते हो इसका मतलब है कि लास्ट इंप्रेशन डालेगा, लास्ट इंप्रेशन अगर अच्छा डाल दिया, बाकी आंसर नॉर्मली था तो ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, वे फॉरवर्ड जैसे अभी वो था कि आपने बोला था ना कि एम्प्लॉयमेंट जॉब क्रिएशन कर देंगे, तो वही है कि सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहस करने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है ना। कल से मैं जॉब क्रिएशन कैसे कर दूँ? कल से मुझे कुछ काम करने हैं जिससे कि आओ जॉब क्रिएशन होगा। ओके, तो इसमें मैं क्या है कि पहले मैं लिखता था ऐसे, इन्वेस्ट कर दूंगा इस चीज़ में, मोर फोकस ऑन दिस, मैं ये सब लिखता था पहले, मोर फोकस ऑन जॉब क्रिएशन पहले ये लिखता था, या फिर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन मनरेगा। लेकिन कैसे करोगे तो क्या कुछ मैंने उससे अच्छा तुम लिखो ना कि जियो टैगिंग कर दूंगा, कुछ स्पेसिफिक लिखो, और वो आसान ही होता है क्योंकि वे फॉरवर्ड में तो कोई लिमिट नहीं है ना, आपका दिमाग जहाँ तक चल रहा है वहाँ तक लिख सकते हो। तो पहले मैं ऐसे लिखता था, स्टेट सब्सिडी दे दूंगा, ये बुरे नहीं है पॉइंट्स, इस पर भी सिलेक्शन हुआ है ना मेरा, लेकिन आपको और मार्क्स बढ़ाने पड़ेंगे। अब ये वे फॉरवर्ड ये मैंने केवल इसलिए डाला कि चैट जीपीटी से मैं कैसे निकालता था। आप लोग ने इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ा है किसी ने? किसने पढ़ा है इंटरनल सिक्योरिटी? एक बार पढ़ा है आपने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है। ओके, इंटरनल सिक्योरिटी में मेजरली ये सब है कि टेररिज्म कैसे ख़त्म कर सकते हैं, क्या रीजंस हैं उसके होने के, फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कैसे, इंसर्जेंसी कैसे है, ये सब होता है। अब उसमें बहुत कॉमन पॉइंट्स होते हैं अक्रॉस कोई भी प्रॉब्लम है कि उसकी फंडिंग ही ख़त्म कर दो, चोक एट द कि उनकी फंडिंग चोक कर दो, होता है, या फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ट्रैक करो, होता है। ये बहुत ही कॉमन पॉइंट है। इसका मैंने ऐसी चीज़ों को जो बहुत ही बेसिक हैं और हर कोई लिखने वाला है, तो मुझे ऐसा लगा इसमें मुझे एक्स्ट्रा चीज़ निकालनी है। जैसे कि मैंने बोला नहीं, हर वर्ड के साथ एक चीज़ मुझे लिखनी है, मैंने सोच लिया था। तो मैंने चैट जीपीटी को पूछा कोई दुनिया का एक अच्छा मॉडल बताओ जिसकी वजह से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ट्रैक आराम से कर सकते हैं फॉर इंटरनल सिक्योरिटी पर्पसेस। तो उसने बोला ये ऑस्ट्रैक नाम से कुछ है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन ऑस्ट्रैक नाम से ऑस्ट्रेलिया में कुछ चलता है जिसमें कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो होते हैं एक लिमिट के ऊपर वो सबका रिकॉर्ड रखता है, और कोई अगर उसको लगता है कि किसी मलाइंग इंटेंट का है तो उसको वो रेड फ्लैग कर देता है। तो मैंने इसको लिख लिया। अब जहाँ कहीं भी आएगा कि मतलब कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने में, मैं ऑस्ट्रैक लिखूंगा। नेट ZDG में लिखा था इंटरनेट को पूरा स्कैन करने के लिए, इंटरनेट सोशल मीडिया को स्कैन करने के लिए जर्मनी का कोई मॉडल था। आप चैट जीपीटी को यूज़ करके निकालो और लिख लो नोट्स में, और उनको तुम यूज़ करो। कहीं से तुम्हें मिला है उससे अच्छा तुम अपना लिखोगे तो तुम्हें याद भी ज़्यादा रहेगा, और जो पढ़ रहा है उसको नई चीज़ देखने को मिलेगी। ये दोनों चीज़ें हैं, और इस पेज पे जो चीज़ें हैं ना वो मेरे को 3 आंसर्स में काम आई हैं इंटरनल सिक्योरिटी के, और मैंने भर भर के लिखी हैं, इसलिए मैंने पेज अलग से डाला है। मैं इसका बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ इस पेज की, मुझे बहुत काम आई है इससे। ओके, ये वे फॉरवर्ड को लेके ही था कि स्पेसिफिक ई-टेक एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर एकेडमी लिंकेजेस, तो बहुत स्पेसिफिक लिखो। प्रिसीजन फार्मिंग लिख रहे हो तो कहीं का एग्जांपल इजराइल का, ये मैंने तो शायद टॉपर की कॉपी से उठाया हुआ है। हम लोग हमेशा लिखते हैं कि सैलिनिटी इश्यूज़ हैं पंजाब में, लिखते हैं कि नहीं वहाँ पे ओवर इरीगेशन की वजह से सैलिनिटी बढ़ गई, तो प्लेन्स में ही पढ़ते हैं सब लोग। तो ये पॉइंट सब लोग लिखेंगे, मैं भी लिखूंगा, तो मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स क्यों देगा? तो मैंने वहाँ पे ढूंढा चैट जीपीटी को पूछ के, तो बताओ पंजाब में अगर सैलिनिटी ज़्यादा है तो कोई तो एरिया होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी। तो उसने बोला हाँ है ना, कोई फजिल्का नाम से डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मैंने लिख लिया। अब जहाँ कहीं भी मैं सैलिनिटी लिखता हूँ वहाँ पे इसको साथ में लिखता हूँ। एक स्टेप आप आगे करो, मैंने वहाँ पे देखो 1 स्टेप मोर, जितना बाकी लोग कर रहे हो उससे एक स्टेप जाओ, कितना आसान है। ये करना क्या कठिन था? बिल्कुल भी नहीं था। ऊपर से ये दोनों साथ में याद भी रहेंगे, सैलिनिटी फजिल्का, सैलिनिटी फजिल्का। ओके, और ऐसे ही आप हर चीज़ के साथ कर सकते हो। जहाँ कहीं में प्रिसीजन फार्मिंग थी वहाँ पे मैंने इजराइल की नीटाफिन या नीटाफिम है कुछ, उसको मैंने याद कर लिया था कि यहाँ पे लिखूंगा, वहाँ पे इसको जरूर लिखूंगा। बस एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है। इसके बाद ये मैंने बस उसी का एग्जांपल है कि एक स्टेप ज़्यादा, सब लोग इंक्लूसिव एजुकेशन लिख देते हैं, लेकिन मैंने एक स्टेप आगे चला गया कि फिनलैंड में ऐसा होता भी है, फिनलैंड मॉडल। ठीक है, ऐसी एक यहाँ पे एग्जांपल आया था कि दिल्ली में भी होम बेस्ड एजुकेशन है फॉर द पर्सन हु आर बिलोंगिंग टू PWD। ओके, ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हम लोग कहते हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटी को हमें देना चाहिए, तो IBM सच में करता है, तो IBM का नाम मैंने लिख दिया। हर चीज़ में देखो, जो मैंने पिंक से दिखाया उसमें बस एक एग्जाम्पल लिखा है उसी पॉइंट का जो सब लोग लिख रहे हैं। ओके, अब ये उसी जो मैं अभी बात कर रहा था कि कहीं पे भी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल चोकिंग की बात है तो मैंने इसको याद कर लिया था। मैं हर चीज़ के लेके कुछ चीज़ याद की थी। डिजिटल विजिलेंस को लेके नेट ZDG करके कुछ है। हाँ, हम लोग हमेशा लगते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाओ जब भी आपको टेररिस्ट को या किसी क्रिमिनल को पकड़ना है, बोलते हैं क्योंकि वो भाग जाते हैं देश के बाहर। तो हम लोग इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाओ, ट्रांसनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाओ। उसका एग्जांपल मैंने कहा कि हमारे एक्सट्रेडिशन ट्रीटी किसके साथ हैं, तो सऊदी के साथ, USA के साथ हैं, और भी कंट्री से मैंने दो लिख लिए कि इन दोनों जगह पे ज़्यादा भाग के जाते होंगे, ऐसा मैंने मान लिया। स्वीडन मॉडल, चाइना मॉडल, कहीं पे भी अगर डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस की बात चल रही है कि एजुकेशन को डिसेंट्रलाइज करना है या इसको करना है, वहाँ पे चाइना मॉडल लिखो। चाइना में बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है मामला जब गवर्नेंस की बात आती है। तो अब ये एक वे फॉरवर्ड, ये फ्रेमवर्क ही है। ये जैसे मैंने ऊपर फ्रेमवर्क दिखाया, डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन, ये इंटरनल सिक्योरिटी का यूँ मान लो हर सवाल पे यूज़ हो सकता है, हर सवाल पे।
डाइड इल मैंने नाम से बना के रखा था, और हर एक का एक वो था, मतलब कि डी से मतलब है कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करवाओ, आई से इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाओ, ई से है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो। और ये अब सोचो, ये इंसर्जेंसी पे भी काम करेगा, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी पे, ये हमारे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे भी काम करेगा, ये हमारे पंजाब में कुछ अगर खालिस्तान का इशू वापस डेवलप हो तो उसमें काम करेगा, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जो इशू है वहाँ पे काम करेगा, इवन रीजनलिज्म के जो इशूज़ हैं या फिर तमिल का कोई इशू अगर हो जाता है कल को उस पर काम करेगा। हर चीज़ पे इसमें से ज़्यादातर पॉइंट बैठ काम कर जाएंगे। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस करो, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवा दो उस एरिया में, तो ये सब क्या है उसको सॉल्व करेंगे। अब मैंने इसको याद कर लिया, मुझे सबके अलग अलग याद नहीं करने, फ्रेमवर्क तैयार है, एज इट इज़ वहीं पे चला देना है। और फ्रेमवर्क कोशिश करना अपने खुद के बनाना, किसी को उठाना नहीं। पर्सनलाइज्ड होता है तो बड़ा हमें उसको लगाव होता है तो हम याद भी रखते हैं। दूसरे का होता है तो एक तो तुम दूसरे जैसा आंसर लिख रहे हो तो कहाँ एज मिला, और दूसरा तुम्हें याद भी तुम अपने मन से नहीं करोगे, किसी और का ही है। अब वो टाइम चला गया जब पेस्टल वगैरह से मार्क्स मिल जाते थे। ये बता दूं, एक पेस्टल नाम से सुना होगा कि लोग पहले पेस्टल लिखते थे, PESTEL, कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ऐसे कर करके। लेकिन अब उस पर मार्क्स नहीं मिलते। अब आप थोड़ा सा सिलेबस स्पेसिफिक फ्रेमवर्क्स बनाओ कि इंटरनल सिक्योरिटी का ये है फ्रेमवर्क मेरा, है ना। फ्रेमवर्क एक तो पॉइंट याद करने में काम आते हैं। जैसे मैं अगर अभी सोचूंगा अभी तो हो सकता है मैं सारे पॉइंट नहीं सोच पाऊंगा, लेकिन ये अगर मैं डाइड याद है तो मैं हर एक के गो थ्रू जाऊंगा तो मेरे को सारे पॉइंट याद तो भी आ जाएंगे। तो जो निमोनिक बनाते हैं वो इसीलिए ही काम आते हैं। फिर कीवर्ड्स क्या है, आपने जो बनाए उसमें ही कीवर्ड्स थे, वही कीवर्ड्स हैं असल में डाइडियल जो है ये हर एक की फुल फॉर्म। तो आपके कीवर्ड्स भी रिकॉल हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आपका बेटर रहता है कि यार ठीक है इंटरनल सिक्योरिटी का तो क्वेश्चन देख लेंगे भाई, मेरे पास है मेरा फ्रेमवर्क। और ज़्यादा पॉइंट्स लिख पाते हो, और ज़्यादा पॉइंट्स के मुझे लगता है ज़्यादा नंबर मिलते हैं, ठीक है, अगर अच्छे पॉइंट लिख रहे हो तो। ये एक है, जैसे इन पे क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आता है कि NCSC, NCST, NCBC, इनके काम बता दो कि ये करते क्या हैं, इनका सिग्निफिकेंस क्या है। मैंने ये याद कर रखा था स्क्रिपल करके, और इनके सबका अब ये इन सभी पे काम करेगा, और NHRC पे भी काम कर जाएगा। ये क्या है कि SA की स्पेशल कोर्ट ये सेटअप करते हैं, CCA की कंप्लेन देखते हैं लोगों की, RC हो गया कि रिकमेंड करते हैं कोई मेजर्स, ऐसे इन्वेस्टिगेट भी करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिसी मेकिंग में, एनुअल रिपोर्ट्स निकालते हैं, और ऐसे लॉ इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अब ये मुझे NCBC का क्वेश्चन आ गया, मुझे कुछ भी याद नहीं आता, मैं इतने पॉइंट लिख दूंगा पेज भर जाएगा, और सारे पॉइंट अलग हैं और सब में कीवर्ड्स हैं। तो इट इज़ नॉट द बेस्ट आंसर। कंटेंट जिसमें होगा उस वो तो बेस्ट है, लेकिन जिसमें कंटेंट नहीं है उसमें भी काम आ रहा है ना। वैसे एक ही क्वेश्चन बहुत बार आता है सोसाइटी में, कि उसमें आता है सोसाइटी में नहीं, एंशिएंट हिस्ट्री में आ जाता है कि ऋग्वेदिक टाइम की सोसाइटी को एनालाइज करो या फिर गुप्ता के टाइम की करो। तो मैंने बना रखा था अगर कोई भी हिस्ट्री की कोई चीज़ को सोसाइटी को एनालाइज करना होगा तो मैं इस पे करूँगा पी स्कार। पी से है कि मैं वहाँ का पॉलिटिकल क्या सिनेरियो है, वुमेन का पार्टिसिपेशन है या नहीं है, या फिर कौन सी किसी कास्ट डिवीज़न हो चुके हैं क्या है। तो ई से है कि इकोनॉमिक लाइफ कैसी है उनकी, वुमेन की कंडीशन क्या है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है कि नहीं है। जैसे इंडस वैली के टाइम पढ़ते हो ना कि कुछ तो स्ट्रेटिफिकेशन था, वो एक बियर्डेड प्रीस्ट है, बाकी लोग नीचे रहते हैं शायद। सी से फिर कल्चरल, ऐसे करके। तो ये अपने बना सकते हो या किसी के उठा भी सकते हो। ये सब अब कुछ नहीं है, ये बस फ्रेमवर्क्स ही हैं बहुत सारे। और ये साइंस एंड टेक को लेके कि राइसेस बना रखा है कि R&D बढ़ा दो, इंडस्ट्री एकेडमी लिंकेज कर दो। मैंने इसके साथ कोई लिख दिया इसलिए मेरे को याद रहेगा, इंडस्ट्री एकेडमी लिंकेज और डिफेंस एकेडमी लिंकेजेस। तो उस तरह से ये वही बात है। अब ये जो मैं बात बोल रहा हूँ शायद से अब ज़्यादा सेंस बना रही होगी कि क्यों। और इनमें से अगर कोई तुम दो भी बेटर कर लेते हो, अगर तुम्हें लगता है टाइम की कमी है तो कोई दो पकड़ लो जो तुम्हें ईजी लग रहे हैं। या तो प्रेजेंटेशन प्लस कंटेंट अच्छा हो, कंटेंट कर पाना सबसे कठिन पार्ट होता है, प्रेजेंटेशन प्लस फ्रेमवर्क हो। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही मेरा सिलेक्शन हुआ है लास्ट ईयर, और इस बार जो सिलेक्शन हुआ है वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन से हुआ है। तो इन दोनों को करना काफ़ी आसान होता है, कंटेंट करना मुश्किल होता है। लेकिन कंटेंट कर लोगे तो फिर मैंने बोला कंटेंट इज़ द किंग, फाइनली तो वही है। ओके कोई भी दो चीज़ें पकड़ के। और प्रीलिम्स ऐसे इंटरव्यू आप लोग पूछना है, आप लोग पूछ सकते हो, लेकिन प्रीलिम्स से मुझे अभी भी डर लगता है। इस बार मुझे प्रीलिम्स नहीं देना पड़ रहा है, यही मुझे सबसे बड़ी खुशी है सिलेक्शन के बाद की, कि प्रीलिम्स मुझे डर लगता है। एसए में मेरे मार्क्स मतलब ऐसा कोई खास इंप्रूवमेंट हुआ नहीं है। तो उनके देखना जाके टॉपर टॉक या उनकी वीडियोस देख लेना जिनके एसए में बहुत ज़्यादा नंबर आए हैं और कंसिस्टेंटली आए हैं। किसी के अगर ऐसा हुआ है ना कि 110 आए फिर 140 फिर से 110, उसके मत सुनना, क्योंकि एसए में एक वो भी है कि सब्जेक्टिविटी उस दिन इवेल्यूएटर को पसंद आ गया। जिसके अक्रॉस 130 प्लस आ रहे हैं, 120 प्लस आए ही जा रहे हैं, उसकी ज़रूर सुनना कि क्या कर रहा है ऐसा, और उसमें से भी सबसे सिंपल चीज़ें निकालना, फैंसी चीज़ें नहीं। अगर वो मान लो वो कह रहा है कि मैं तो बहुत किताबें पढ़ता था तो इसलिए मेरे अच्छे थे, तो फिर वो तो हम नहीं कर पाएंगे अगर आप नहीं पढ़ते हो। तो फिर क्यों वो चीज़ करना जो आप नहीं कर पाओगे। तो उनके देखो जो कि बहुत सिंपल लिखते हैं। ओके अब ये है इस साल का पेपर। ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना येलो से और ब्राउन और ये से
ऑरेंज कलर से, ये वो हैं जो कि मेरे नोट्स में पहले से थे। इसका मतलब है कि कंटेंट आपने डेवलप किया तो कितने सारे क्वेश्चन आपके टैकल हो जाएंगे। जो ब्लू वाला है वो मैंने इसलिए किया है कि ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं, मतलब ये वहीं सोचने होते हैं, ये वैसे भी आप इस पर डेवलप नहीं कर सकते हो, तो वो किसी काम के नहीं रह गए। और जो बाकी काम के थे उनमें से ये सब मेरे नोट्स में पहले से थे, और ये मेरे नोट्स में थे। इसका मतलब है कि आप भी बना सकते हो, बस आपको PYQ प्लस सिलेबस, इसको अच्छे से एक्सटेंसिव नोट्स बनाने हैं। इतना कर लोगे तो इतने सारे क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन एक बार देखो, दो द ग्रेट चोलास आर नो मोर येट देयर नेम is still remembered with great pride because of their highest achievement in the domain of art and architecture। तो ओवरऑल क्वेश्चन ये है कि इनका बहुत ही भयानक अचीवमेंट रहे हैं इन द डोमेन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ओनली 2 थिंग्स, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सिलेबस में क्या लिखा हुआ है कि एंशियंट हिस्ट्री के जो एम्पायर्स हुए हैं उनके आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर, 3 चीज़ें आपको पढ़नी है, यही सिलेबस में लिखा है। ये पहला पॉइंट शायद यही है हमारे GS1 का। तो अगर आपने हर बड़ी डायनेस्टी के इन 3 डिमेंशन पे नोट्स बना दिए हैं, उसी में से क्वेश्चन बन गया, वो 15 मार्कर है, तो उसमें से लिटरेचर वाला पार्ट हटा दो, आर्ट एंड आर्किटेक्चर बचा, उस पर बस लिखते चले जाओ, 3 पेज भरने हैं। एक बिल्कुल सेम क्वेश्चन देखो यहाँ पे आया, एस्टिमेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवा इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। अब इसमें आर्ट और लिटरेचर पूछा, आर्किटेक्चर नहीं पूछा। सिलेबस में 3 ही चीज़ें लिखी हैं, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर, उसी के कॉम्बिनेशन में ये लोग सवाल पूछते रहते हैं। अब ये वैसे देख पाना कि भाई बहुत कठिन क्वेश्चन है, भी बहुत कठिन है, लेकिन अब नोट्स में मैंने देखो, मैंने यहाँ पे नोट्स का उसका स्क्रीनशॉट भी डाला है। मैंने चोला का नोट्स ही ऐसे बनाया था कि चोला का आर्किटेक्चर में क्या क्या है, फिर आर्ट में क्या क्या है, और लिटरेचर में क्या क्या है। अब ये अगर मुझे याद था, मेरे नोट्स में था, मुझे बस इसमें से लिटरेचर का नहीं लिखना है, आर्ट और अगर आर्किटेक्चर का लिखना है, तो इन दोनों से मैंने 3 पेज कैसे भी थोड़ा एक्सपेंड कर करके भर दिए। तो यहाँ पे देखो, अगर तुम देखोगे 19, 20 और 14, 15, 16, केवल यही क्वेश्चन है, बाग और 4 ये क्वेश्चन है जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पता थे और मैंने पढ़े नहीं थे। नहीं कि टोटल कितने 5-6 क्वेश्चन हुए, 20 में से केवल 5-6 क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल नहीं पता थे। ये बाकी जो हाईलाइटेड हैं वो मुझे पता थे, मेरे नोट्स में थे, या फिर उस पर मेरे पे या फिर फ्रेमवर्क तैयार था। मैं दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ, क्योंकि जो ऑरेंज है वो ज़्यादातर वो है कि जिन पे मेरा फ्रेमवर्क। अब ये वाला देखो, लेट्स से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, या फिर ठीक है, मतलब ये है कि कुछ मेरे फ्रेमवर्क से क्वेश्चन सॉल्व हो गए, मैंने शायद डिस्टिंक्शन नहीं किया है, और कुछ जो मेरे नोट्स में थे। और इतना तुम कर लोगे तो बाकी जो 5-6 क्वेश्चन है ना, उनमें 1-1, 2-2 मार्क्स भी ले आओ तो भी अच्छे ही मार्क्स आएंगे। अगर 16 मतलब 14 क्वेश्चन अच्छे से कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है। देखो नोट, हाँ देखो, अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन 18 वाला दिखाई दे रहा है आप लोग को? पढ़ने में आ रहा है क्या? Despite comprehensive policies for equity and social justice, underprivileged sections are not yet getting the full benefits of affirmative action envisaged by the Constitution. Comment. मोटा मोटा ये कह रहा है कि अंडर प्रिविलेज सेक्शंस को अभी भी उनके हक की जो उनके अफर्मेटिव एक्शन है वो नहीं मिल पा रहे हैं, फुल बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन असल में ये हुआ कि हम लोग जो पॉलिसीज़ बनाए हैं वो काम कर नहीं रही हैं, उन तक पहुँच नहीं रही हैं। इसके लिए क्या फ्रेमवर्क था? डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। और डिज़ाइन पे भी जो लिखा हुआ था एज इट इज़ छाप दो कि यही सब इशूज़ हैं, और इम्प्लीमेंटेशन में ये सब इशूज़ हैं। 15 मार्कर है, 2-3 पेज भरने, आराम से भर सकते हो उतने पॉइंट से। थोड़ा एक्सपेंड करके लिख दो और थोड़े से स्पेसिफिक कर दो, क्योंकि ये अंडर प्रिविलेज सेक्शन और इक्विटी सोशल जस्टिस की बात कर रहा है। कुछ और कीवर्ड्स फेंक दो कि उसमें थोड़ा कास्ट का एंगल भी जाएगा, उसमें थोड़ा रिलीजन का एंगल भी जाएगा, उसमें रीजन का भी एंगल जाएगा, रीजनल डाइवर्सिटी जो है हमारी। तो ये उस फ्रेमवर्क से हो रहा है, इसलिए मैंने इसको ऑरेंज से किया। ये वाला पूरा एज इट इज़ कंटेंट मतलब मेरे नोट्स में था। ऐसे ही GS2 है, उसमें भी मैंने हाईलाइट करके मैंने ये एनालाइज किया कि कितने क्वेश्चन डायरेक्टली फंस रहे थे। तो जो हाईलाइटेड हैं ब्लू के अलावा वो एज इट इज़ फंस रहे थे मेरे नोट्स से। ब्लू वाले से थे जो कि आप कितना भी पढ़ के चले जाओ, ये आप तैयार नहीं करोगे। तो इसको लेके फिर मुझे दुख भी नहीं मनाना चाहिए कि मेरे से नहीं फंसा, जब किसी के नहीं फंसा। बाकी जो बच्चे जो बिल्कुल हाईलाइटेड नहीं है, केवल वही हैं जिस पे मैं आज की डेट में दुख कर सकता हूँ कि यार ये पढ़ लेना चाहिए था। लेकिन अब इतने कम हैं वो कि उसको लेके हमें दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए PYQ देख रहे हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये वाला तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। हो सकता है वो किसी ने नहीं पढ़ा और पढ़ा जाता ही नहीं है। ओके, अब यहाँ पे एक था, ये देखो, सजेस्ट सम मेजर्स थ्रू विच स्टेट कैन एनहेंस द रीच ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर एट ग्रास रूट लेवल। तो इसमें क्या करूँगा मैं, जो मैंने मॉडल्स बना रखे हैं वो सब छाप दूंगा लाइन से, 1 पेज भर जाएगा और अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे। ये GS3 का है। CS3 में भी देखो कितना सारा है, केवल कुछ ही क्वेश्चन है जो हाईलाइटेड नहीं है। इसका मतलब कंटेंट तैयार कर लो, फ्रेमवर्क तैयार कर लो, तो तुम्हारे क्वेश्चन टैकल हो जाएंगे मेंस में। ओके, अब फ्लडिंग इन अर्बन एरिया से को क्वेश्चन आ गया। मैंने थोड़ी देर पहले आपको फ्लडिंग का डायग्राम दिखाया था, मैं वो बना के आ गया सबसे पहले। इंट्रोडक्शन ही नहीं लिखा मैंने, इसका इंट्रोडक्शन में वही बना के आया था कि यही मेरा इंट्रोडक्शन है, आप सीधा बॉडी चालू करो। क्योंकि मुझे लग रहा है बाकी लोग लाइन लिख रहे हैं, मैं अपना डायग्राम बना दूंगा। डिजास्टर अच्छा, यहाँ पे एक ये क्वेश्चन था
ये देखो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान वगैरह, बॉर्डर के इश्यूज़ क्या हैं ये सब। तो अभी मैंने जो बॉर्डर के इश्यूज़ दिखाए इतने सारे, ओके बस ख़त्म, इतना ही था। अभी आप लोग के कोई क्वेश्चंस हैं मेंस को लेके तो आप पूछ सकते हो। सर ऑप्शनल को स्टार्टिंग में साथ लेके चलना चाहिए या फिर पहले जीएस कंप्लीट करना चाहिए उसके बाद ऑप्शनल करें? नहीं नहीं, साथ में लेके चलना चाहिए। ऑप्शनल में आपको डेप्थ चाहिए होती है, और डेप्थ बहुत कम टाइम में, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि कम टाइम में ही डेप्थ ला सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में। आपको डेप्थ के लिए लंबे टाइम तक पढ़ना पड़ता है, और ऊपर से जीएस पढ़ के आप बोर भी हो जाओगे तो आप ऑप्शनल साथ में शुरू कर दो। अगर आप 2025 का अटैम्प्ट, 2025 में तो काफ़ी लेट हो गया है, लेकिन 2026 के अटैम्प्ट के लिए आपको अभी से शुरू करना होगा। ओके, आपका कोई डाउट था शायद? सर जैसे आपने कहा कि जो कीवर्ड है तो हर कीवर्ड को डिफाइन करना जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं, मैंने तो कहाँ ऐसे ही लिखा हुआ है, बस वो कीवर्ड एसोसिएटेड हो जो तुम पॉइंट लिख रहे हो उससे। ओके, तुम अगर मान लो वेलफेयर की बात लिख रहे हो कुछ कि यार ये पॉलिसीज़ को ना पुअर सेंट्रिक बनाना चाहिए हमें, या फिर अंडर प्रिविलेज जो है उनकी सेंट्रिक बनाना चाहिए, तो वहाँ पे आप तुम डाल सकते कीवर्ड के तौर पे आर्टिकल डाल सकते हो कोई जो कि ऐसे इक्वलिटी की बात करता है, जैसे आर्टिकल 15 डाल सकते हो, इक्वलिटी की बात करते ही। तो आप इनको बना के बॉक्स कर दो, ये भी एक कीवर्ड ही है मेरे हिसाब से। आपको वो डिफाइन नहीं करना, आर्टिकल 15 लिख दिया मैं इसको डिफाइन करूँ, फिर मैं एम्पैथी लिख रहा हूँ मैं इसको डिफाइन करूँ। एम्पैथी अपने आप में ही वो सेल्फ डिफाइन हो रहा है। तो जैसा कोई डायग्राम बनाते हैं या फिर मैप बनाते हैं तो उसमें कीवर्ड लिखते हैं तो और उसके नीचे थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं या फिर इतना देखो, इतना ही तो इतना टाइम होता है, और अगर वो कीवर्ड तुम नॉर्मली तो लिख रहे हो ना, ऐसा तो नहीं है कि कोई फैंसी सी बात लिख रहे हो, तो वो जो पढ़ रहा है उसको भी समझ में आ जाता है कि क्या लिखा है। तो डिफाइन करने के ऊपर जोर मत दो, थैंक यू। बस साफ नीटली बनाओ डायग्राम्स और मैप्स। और कोई किसी को क्वेश्चन है किसी भी चीज़ को लेके, प्रीलिम्स या मेंस? पीडीएफ मैं मैम को सेंड कर दूंगा, मैं मैम को किया हुआ है ये, आप मैम किस भी कन्वे कर देना। ओके ठीक है, फिर बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रीलिम्स जो इस बार दे रहे हैं। So Ketan has explained a lot about the outcome is basically by doing the basic structured planning, focusing on your content, and it's very clear. The three most essential part is presentation, content, and creating a framework. So this is not easy, and it's not going to be happening in a one day. But start from the scratch, start building your content, your presentation, and start doing the things. Start writing assignments, doing the test, okay, revising your notes, shortening your notes. So these are the things that you have to focus. And this is a huge example of what determination and structural preparation looks like, and this is how you actually become a topper. All right. So this is one of the most structured talks that we have actually hosted, and thank you so much, Ketan. A huge round of applause for Ketan. थैंक यू।